Good morning, everyone. Good morning. 1 minute. Yeah. আজকে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আবার আমার পাওয়ার টকের আজকের এই মঙ্গলবারে। আজকে আমাদের সঙ্গে গেস্ট যিনি আছেন একজন গ্ল্যামারাস গেস্ট ফ্রম মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি, উনি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কে চুজ করেছেন। আমরা অনেক সফল লোকের কথা শুনেছি, অনেক বড় ব্যক্তিত্বের কথা শুনেছি এই গত কয়েক সপ্তাহে। সেরকমই একজন সাকসেসফুল লিডার যিনি বেশি দিন হয়নি বিজনেসটা স্টার্ট করেছেন, মাত্র ৩ বছর। অনেকেই হয়তো তারও কম সময়ে এই বিজনেসটা যারা শুনছেন তারা হয়তো এই বিজনেসটা আরো কম সময় ধরে করছেন। বাট আমরা আজকে তার সাফল্যের কথা শুনবো, তার এই বিজনেসের কথা শুনবো আজকের এই পাওয়ার টক সেশনে। তো আমি আশা করব আপনারা যারা অলরেডি লগ ইন করেছেন বা আপনারা যারা কেউ প্লিজ ফেসবুক ছাড়া আমরা কিন্তু জুমে ট্রাই করবেন না। আপনি ফেসবুক লাইভ পেজ ইউরেকা ইন্ডিমার্ক পেজে আপনি যান এবং আপনি যে নাম্বারটা পেয়েছেন বা যে নোটিফিকেশনটা পেয়েছেন সেখানে যে আপনার ইউরেকা ইন্ডিমার্কের পেজের যে নাম্বার দেওয়া আছে বা লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করুন এবং আপনি লাইভ এই প্রোগ্রাম দেখতে পাবেন। তো আমি আপনাদেরকে সকলকে রিকোয়েস্ট করব যে আজকে সিরিয়াসলি আমরা এই প্রেজেন্টেশনটা শুনবো। আমরা আজকে এমন একজন অ্যাচিভারের কাছ থেকে শুনবো যিনি আসামে থাকেন এবং এই বিজনেসটা 3 বছর স্টার্ট করেছেন এবং সাফল্যের সঙ্গে বিজনেসটা করছেন। এবং তিনি বাই প্রফেশনে কি ছিলেন না ছিলেন আমি কিছু বলবো না, এগুলো তার কাছ থেকে শুনবো। তো আমি ওয়েলকাম করছি আমাদের গেস্টকে। এবং যেহেতু উনি বাংলা আমি জানি না জানেন কিনা, বাট হিন্দিতে আমরা কথা বলবো, তাই আমি ওনার সাথে যখন কথা বলতে স্টার্ট করব হিন্দিতে স্টার্ট করব এবং আপনারা এনজয় করবেন আজকে আমাদের এই ডিসকাশন এবং ডেফিনেটলি এই প্রোগ্রাম আপনাকে অনেক মোটিভেট করবে। সো ওয়েলকাম মাধেহা ইয়াসমিন, যিনি আসামে থাকেন। হাই মাধেহা, হাউ আর ইউ? I'm very fine, sir. I'm very fine. And thank you so much. Thank you so much for this golden opportunity, I should say. Thank you so much, sir. Okay. Madeha, basically, this is basically a conversation program. Okay. I named it a power talk. Power, why? Because I know you are an achiever. So your talk will give power to empower people, empower women, empower every Vestigian. Okay. So the name of this program is Power Talk with a star celebrity. So you are celebrity today. You are the star of Vestige here. So आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और बातचीतों में ही बेसिकली आपका एक्सपीरियंस से लेके सारे सब कुछ हम लोग आज सुनेंगे जानेंगे। सो आपको आपको मेजर ऑफ दिस ऑडियंस इज फ्रॉम Bangladesh and West Bengal, from Bengali, but I don't think you understand Bengali, or can you talk Bengali? So सबसे पहले तो सबको बहुत बढ़िया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी इंडिया में तो चलो इतने सारे इंडिया मार्ट आपके यूरेका इंडिया मार्ट के इतने सारे लोग हैं जो इस शो को देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार, लाइक ए वेरी वेरी वार्म एंड हेवी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो कि बांग्लादेश से जितने फ्रेंड्स यहाँ पर और जितने वेस्ट बंगाल से यहाँ पे जितने सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनको मैं बोलना चाहूंगी कि আমি বাংলা পুরাপুরি বুঝি, আমি কিন্তু আমি বলতে অল্প অল্প পারি। সো স্পেশালি ফর বাংলাদেশি जितने हमारे भाई बहन हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि আমার সোনার বাংলাদেশ और আমি তোমায় ভালোবাসি, ये बोल के मैं एग्जैक्टली हमारा ये प्रोग्राम शुरू करना चाहूंगी सर। ओके, सो अच्छा, जो যেহেতু তুমি বলতে পারো বাংলা, সো ক্যান উই টক ইন বাংলা? सर बहुत अटक जाएगा सर, बीच बीच में चांसेस आर देयर दैट मजे मजे वो अटकेगा सर वो। ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हिंदी में बात करेंगे और कुछ कुछ चीज आपको जो भी जहाँ पे भी अच्छा लगे आप बांग्ला बोल देना। सो जो बांग्लादेशी जी है और बांग्लादेश से है उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वही एक कंट्री है जो जिसका जो लैंग्वेज के लिए इतना लड़ाई किया है और हम लोगों को एक मदर लैंग्वेज डे दिया है। दुनिया में जो आज हम लोग मदर टंग डे या मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं, ये केम फ्रॉम बेसिकली बांग्लादेश। वहां पे हजारों हजारों लोग अपने जिंदगी दे चुके हैं, मर चुके हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। सो इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। सो अगर हो सके जहां जहां पे आपको अच्छा लगेगा, यू कैन टॉक बंगाली ऑल्सो, यू कैन टॉक टू। ओके, अगर गलती कुछ की तो प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन आई वुड डेफिनेटली ट्राई समवेयर जरूर। ओके सर जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिकली मेरा क्वेश्चन पहला आपसे आपके साथ ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए। बेसिकली हम लोग जानना चाहेंगे आपका स्टोरी, आपका फैमिली के बारे में और
किस तरीके से यू आर इंट्रोड्यूस टू नेटवर्क मार्केटिंग? Okay. So, sir, what I feel is I'm a very good human being and I'm a blessed child of God. That's why Vestige is a gift from Allah to me. ये मैं फील करती हूँ सर, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि वेस्टीज एक बहुत ही नेक बिजनेस है, बहुत ही पाक बिजनेस है। तो ये बिजनेस सबको समझ में इसीलिए ही नहीं आता है, बिकॉज अगर वो अच्छा इंसान है तो उसको पक्का ही समझ में आएगा कि व्हाट इज बिजनेस, व्हाट इज दिस वेस्टीज। सो मुझे लगता है कि आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ ऊपर वाला, दैट्स व्हाई वेस्टीज इज विद मी। लेकिन अगर अपने स्टोरी जो आपने अब जो आप जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले क्या किया था, लाइक नेटवर्क, तो मेरे लाइफ का पहला नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर है तो वो है वेस्टीज। उससे पहले मुझे नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है मुझे वो भी इवन पता नहीं था। और हमारा भी जितना भी जो खानदान है, मेरे अब्बा के बारे में बोल लीजिए, मेरे अम्मा के बारे में बोल लीजिए, मेरे मासी मामा, वी आर ऑल, हम लोग नौकरी पेशा, मतलब हम लोग हमेशा नौकरी किए हैं। लाइक पापा वाज ए डॉक्टर इन डिफेंस, मॉम वाज ए टीचर, स्कूल टीचर, मासी भी स्कूल टीचर है, मामा मेरे टी गार्डन में मैनेजर है। तो बेसिकली हमारा जो फैमिली है वो हमेशा सिर्फ नौकरी, जॉब ओरिएंटेड है, लेकिन किसी ने भी अब बिजनेस करने का सोचा भी नहीं या किया भी नहीं था। सो व्हाट आई फील कि आज तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ही इस खानदान की पहली लेडी हूँ जो एक खुद को मानती हूँ दैट आई एम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और ये मुमकिन हुआ है एकमात्र वेस्टीज के जरिए। सो वेस्टीज से पहले बहुत कुछ किया सर, एक्चुअली मैंने बहुत कुछ ही किया था। अगर कोई पूरी कहानी सुनता है तो वो तो थोड़ा कंफ्यूज ही हो जाता है कि इतना कुछ एक इंसान इतना कुछ कर सकता है क्या, ये कहीं स्टेबल क्यों नहीं हो पाती है, किसी को दिमाग में तो इस तरह के सवाल भी आने लग जाएंगे। लेकिन दरअसल मेरा मानना है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन, और जहां पर ऊपर वाले की मर्जी होती है, जहाँ ऊपर वाले की मर्जी होती है सर, तो उस पर हमको एक्चुअली उस पर हम रोक नहीं सकते हैं। वो ऊपर वाले की मर्जी से जब हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए। एक्चुअली हम उस वक्त रोते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, इस तरह से क्या हो रहा है मेरे साथ, समझ में नहीं आता। लेकिन आज समझ में आता है कि एग्जैक्टली दोज पड़ाव क्यों आए थे मेरे लाइफ में। तो अपनी फैमिली के बारे में अगर आपको हल्का सा बताना चाहूंगी तो वी आर वेरी स्मॉल फैमिली, हमारा बहुत छोटा सा फैमिली है। मेरा अब्बा अम्मा है, मैं हूँ और मेरी सिस्टर है। मेरी पापा को मैंने बताया कि अब्बा वॉज ए डॉक्टर इन डिफेंस, मम्मी वॉज ए स्कूल टीचर, मैं हूँ, और मेरी छोटी सिस्टर है वो लंदन में रहती है। तो उसका पढ़ाई वगैरह पुणे से उसने किया था, देन शी वेंट टू ससेक्स यूनिवर्सिटी लंदन, और फिलहाल वो लंदन के डॉइच बैंक में टेक्निकल डिपार्टमेंट में अच्छा जॉब कर रही है। शी इज वेल सेटल्ड इन लंदन, यूके। तो अगर बोलना चाहे तो हम लोग का घर का काबिल बच्चा आज तक छोटा वाला ज्यादा काबिल बच्चा है। तो वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई में भी सबसे ज्यादा वो सब, मैं हमेशा थोड़ा आर्ट्स के प्रति थोड़ा मेरा ज्यादा इंक्लाइनेशन होता है, डिक्लाइनेशन होता है, उसका हमेशा थोड़ा वो इंटेलेक्चुअल है वो। तो उस साइड से वो शी इज डूइंग वेल, और उसका अल्लाह और भी अच्छा करे, मैं यही चाहती हूँ, उसको दुआ देना। सो फिलहाल यही छोटी सी फैमिली थी। अब्बा जैसे कि डॉक्टर है तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि दो बेटी है तो एक डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए तो काफी अच्छा है। तो छोटी ने तो वो सपना पूरा कर दिया, इंजीनियर बनूंगी बनूंगी बनूंगी, और बन के भी दिखा दिया। लेकिन मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इसको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो 11th 12th में साइंस तो ले लिया, बट मैं हमेशा वो, मेरे को नाटक अच्छा लगता है, मुझे डिबेट कंपटीशन अच्छा लगता है, मतलब वो आर्ट्स की तरफ मेरा दिमाग ज्यादा जाता है। तो पढ़ ले तो लिया बट उससे कुछ हो नहीं रहा था। बीएससी जस्ट किया, और सॉरी ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मेडिकल एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस में कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद अगेन पापा ने बोला बीएससी कर ले, तो फिर तो जूलॉजी में मैंने बीएससी किया हुआ था, गुवाहाटी से ही किया था वो। देन द ट्रैक चेंज्ड, आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में जाकर मैंने वहां पर एक एविएशन एकेडमी में एक कोर्स किया था, और उस कोर्स के बाद आई वाज विद एन एयरलाइंस, बेसिकली उस एयरलाइंस का नाम मैं भी लूंगी नहीं, but I was working as an air hostess as well in an airlines which is still operating by the way. So वो था। उसके बाद वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो जॉब छोड़ा, फिर सम ट्रैवल एजेंसीज, फिर बहुत कुछ सर, इतना कुछ हुआ है ना कि मतलब वही बोलती हूँ ना कि कोई अगर बोले कि इतना कुछ कर रखा है तुमने, इवन मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी में भी काम करके मैंने ट्राई किया है, पर कुछ हो नहीं रहा था। मतलब सही सही होता है पर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, सही सही होता है कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हर वक्त हर वक्त हर वक्त। तो यही चीज मुझे बड़ा इरिटेट करता था कि क्या हो रहा है, मतलब मैं तो अपना 100% देने की हर जगह ही कोशिश कर रही हूँ, पर ऊपर वाला क्यों नाखुश है मुझसे, वाई? मतलब बारे 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 आबार 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 द सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है मेरे लाइफ में। तो माय अब्बा गॉट रिटायर्ड इन 2010, एंड उसके बाद मेरे अब्बा ने कहा कि थोड़ा तुम आ जाओ, क्योंकि अम्मा यहाँ अकेले है, थोड़ा उनको थोड़ा अकेलापन भी होता है, तो तुम आ जाओ रिटायरमेंट के बाद, तुम कुछ टाइम हमारे साथ यहाँ पर आ जाओ। नौगांव इज माय होम टाउन, बेसिकली आसाम में ही है।
तो मैं आ गई थी, तो बैठी हुई थी घर में और बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था सर, बिकॉज व्हेन यू टच मनी, मतलब आप जब पैसा आपको मिल जाता है, उसके बाद अगर आप घर में आके कुछ नहीं करके बैठो और अब्बा से आपको हर चीज के लिए अगर पैसे मांगने की नौबत आ जाए, तो वो बड़ा ईगो पे भी लगता है और दूसरा आपको अच्छा भी नहीं लगता कि क्या करोगे। तो उसी सेंस में बैठे बैठे चलो मेरा फिर ट्रैक चेंज हुआ, समहाउ वहां पर एक लोकल चैनल था, न्यूज चैनल, तो वहां पर हिंदी इंग्लिश का न्यूज एंकर ढूंढ रहे थे। तो मैं वैसे ही नाचते नाचते चली गई वहां पर, मतलब बिकॉज ये तो मेरा वो नहीं था, मैंने किया कुछ था, हुआ कुछ था। तो वहां पर सिलेक्शन एक ही बार में हो गया एंड दे सेड कि कल से आप ज्वाइन करो, हिंदी न्यूज इंग्लिश न्यूज सब करना पड़ेगा आपको। तो मेरे को लगा टाइम पास तो हो रहा है चलो, एंड आप हंसोगे, उस वक्त मेरा जो सैलरी था वो था 2,000 रुपया। 2,000 रुपया में उन्होंने वहां पर सैलरी दिया, क्योंकि दिल्ली में कहाँ जो 35-40 वाला सैलरी था वो आके 2,000 पे आके गिरा। तो फिर भी आई वॉज हैप्पी कि चलो कुछ नहीं, अम्मा अब्बा के साथ हूँ और चल रहा है, इट्स ओके फाइन। तो वहां पर वो ट्रैक चलते चलते फिर देखा कि 2,000 में तो गुजारा नहीं होता है भाई, थोड़ा तो कर, कुछ तो आगे आना पड़ेगा। मतलब वो लोग मेरा मतलब वही जो गन्ना बोलते हैं ना, वो जो जॉब में जो बोलते हैं गन्ना, गन्ना के मशीन में डालो, उसको पीसेंगे पीसेंगे पीसेंगे, आप रस निकलेगा, उसको आप फेंकेंगे। तो यही चीज मेरे साथ वहां पर बहुत बुरी तरीके से हो रहा था। तो मुझे लगा ये 2,000 में यहाँ पर नहीं काम चलने वाला, आई हैव टू मूव आउट। तो मैंने मूव आउट करके मैं गुवाहाटी आ गई थी, और गुवाहाटी में आके फिर कुछ दूरदर्शन के प्रोग्राम्स किए, दीदी नॉर्थ ईस्ट के प्रोग्राम्स किए, कुछ चैनल्स में पार्ट टाइम एंकर का काम भी किया, कुछ एक्टिंग्स भी किए। ऐसे ऐसे दिन भी देखे सर जहां पर 500 रुपया पर एपिसोड वाला काम भी किया है सर, वैसा भी किया है काम। लेकिन आई विल सर्वाइव, मतलब आई विल नेवर गिव अप। ये वाला ये एक है कि कुछ भी हो जाए गिव अप तो नहीं करना है, कुछ तो करना है। अब पता नहीं क्या करना है, बट रुकना नहीं है मुझे। आई डोंट वांट टू मतलब सिट बैक एंड जस्ट सी कि क्या हो रहा है, करना पड़ेगा ना सर, करोगे तभी तो मिलेगा। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग एंड ट्राइंग माय लक कि कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। देन समहाउ दैट लक ने अच्छा स्ट्राइक किया, एंड यहाँ का जो सबसे ओल्डेस्ट जो नॉर्थ ईस्ट का चैनल है यहाँ पर, जो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन वो चैनल में मुझे चांस मिला, एंड आई वाज वर्किंग एज ए हिंदी न्यूज एंकर इन दैट चैनल फॉर अबाउट 4.5 years। 4.5 years, हाँ, मैंने काम कर रही थी वहां पर। तो वहाँ सैलरी चलो पहले 7,000 था, फिर बढ़ते बढ़ते वहां पर 10,000 तक का सैलरी हुआ था। सो इट वाज ऑल गुड, अच्छा ही था, इतना बुरा नहीं था। बिकॉज आप जब टीवी पे निकलते हो, आई कैन शो यू सम क्लिप्स ऑल्सो, उस चैनल के कुछ क्लिप्स है मेरे पास। तो अच्छा ही चल रहा था, एवरीथिंग वाज गुड। बट सडनली ड्यू टू सम मैनेजरल इशू, हम गए हैं न्यूज पढ़ने के लिए, हमें बोला कि आज से आपका चैनल बंद हो गया, आप जा सकते हैं। तो दैट वाज सच ए ब्लो अगेन कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब आबार, ओ माय गॉड आबार, मतलब अभी क्या कर दिया मैंने, फिर से 4-4.5 का फिर से झटका लग रहा है मेरे को, ये क्यों कर रहे हो अल्लाह, मतलब आखिर वाई, इस तरह से आप मेरे साथ कर क्यों रहे हो। तो चैनल मतलब जॉब चली गई। तो आज ना मैं ये बात उस दिन भी फील कर रही थी कि कोरोना के चलते अब जैसे पता चल रहा है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोगों की जॉब चली गई है। तो आज उनको जो फील आती है वो फील एक्चुअली मुझे तो कब का ही मिल चुका है। मतलब जॉब अचानक जाने से कैसा फील आता है, मतलब अचानक जमीन, मतलब पैरों तले जमीन कैसे खिसकती है, वो वाली फीलिंग। सो फिर बेरोजगार अगेन, मदिया अगेन गॉट जॉबलेस। तो जॉबलेस के बाद एंड द मेन प्रॉब्लम, एज पापा वाज इन डिफेंस, हमारा हमेशा स्कूलिंग सीबीएसई में हुआ। तो सीबीएसई में पढ़ने की वजह से मेरे जो एसएमएस पढ़ने का स्क्रिप्ट इज नॉट दैट क्लियर। सो दैट्स व्हाई एक और प्रॉब्लम हो गया, आई कैन नॉट अप्लाई इन अदर चैनल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज वहां पर हिंदी इंग्लिश बुलेटिन था नहीं, सिर्फ हमारे चैनल पे हिंदी इंग्लिश बुलेटिन था, सब जगह में सिर्फ एसएमएस बुलेटिन चलता है लोकल। तो वहां पर भी मैं अप्लाई भी नहीं कर सकती, तो वो भी मेरा एक माइनस पॉइंट हो गया। तो आई केम बैक टू नौगांव, आई वाज क्राइंग, आई वाज लेमेंटिंग दैट व्हाई, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एट दैट टाइम ही वाज एन एंजल, आई शुड से। आज तो वैसा ही लगता है कि वही बात हो सकती है कि वो एंजल ही है, भगवान ने या अल्लाह ने उनको भेजा था मेरे लिए। तो माई ऊपर की जो लेडी है और हमारे घर के ऊपर आंटी रहती है, वो आई, वो आके मुझे बोली कि मदिया तुमसे एक बात करनी है, सम पीपल हैव कम फ्रॉम सम कंपनी, आप कुछ बात करोगे। मैंने बोला बिल्कुल बात नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऑलरेडी कोई एक नेटवर्क कंपनी में काम करती थी। तो मुझे लगा उसी नेटवर्क का बात करने के लिए शायद वो मुझे आया होगा, कोई उससे बुलाना चाह रही है, मुझे दिखाना चाह रही है। तो मैंने बोला मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था तेल साबुन बिजनेस होता है सिर्फ नेटवर्क, लिटरली मैं ही ये सोचती थी। और मुझे लगता था ये तो कौन करेगा ये सब काम, मुझसे तो कभी जिंदगी में नहीं होगा ये काम, लाइक व्हाई आई विल डू दिस, मतलब ये मेरा ईगो था शायद उस वक्त। दो जॉब नहीं था पर ईगो था शायद। तो उस वक्त दैट लेडी ने दरअसल एक मेरे दुखती रख पे हाथ रख दिया। वो दुखती रख पे हाथ ये है कि सर, जैसे कि हीरक सर आप भी तो मीडिया इंडस्ट्री से ही हो, तो आपको भी ये अच्छे से पता होगा कि जब आप मीडिया में काम करते हो तो एक्चुअली खाने पीने का समय का कोई टाइमिंग नहीं रहता है। आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे कोई नहीं पता, आपको सुबह निकल जाना, आपको रिपोर्टिंग में भी भेज देंगे, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। तो
बिकॉज ऑफ दैट इशू फॉर द टाइमिंग थिंग, खाने का टाइमिंग थी, मेरे को गेस्ट्राइटिस हो गया था बहुत भयंकर, बहुत बुरा वाला गेस्ट्राइटिस, मतलब जिसमें मतलब मुझे हर दिन सुबह उठ के आई हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड देन आई हैव टू प्यूक इट आउट एवरी डे, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब मेरा हालत खराब हो जाता था। पापा तो खुद ही डॉक्टर है, पापा हमेशा जितने एलोपैथिक के, जितना आपको आप बोलिए ओमिपेराजोल बोलिए, पेंटापोराजोल बोलिए, डाइजिन बोलिए, जितने सारे हैं सब कुछ वो मुझे देते थे। बट वो जब तक खाया खाया तब तक ठीक, जब छोड़ा फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो वो प्रॉब्लम तो मेरे को मतलब लंबे समय से ही हो ही रहा था। तो दैट लेडी जो हमारे ऊपर रहती है उसको ये प्रॉब्लम पता था मेरा कि मुझे ये प्रॉब्लम होता है। तो उसने कहा कि ये जो कंपनी है ना उस पे ना गैस्ट्रिक का कुछ मिलता है। तो आई वाज लाइक ओ अच्छा, तो मेरे को तो लग गया था अब तो इसको सुनना चाहिए, देन आई शुड गो एंड लाइक टॉक। So that's why I went to her place. There was a nice gentleman there. He was from Hujai, जो हम सबके अपलाइन है, मिस्टर जमील अहमद सर। राइट नाउ ही इज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, उस वक्त वो डायमंड थे। तो जमील अहमद सर आए हुए थे, तो जमील सर ने बड़ा अच्छे से मुझसे बात किया। बट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी उनकी बातों पर, क्योंकि मुझे लग रहा था ये कैसे हो सकता है, मतलब जो कहानी वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी दिखाई थी मुझे। यस आई स्टिल रिमेंबर, ही शोड मी हिज कार दैट इज i20 स्पोर्ट्स, और उसमें वेस्टीज लिखा हुआ था, और उन्होंने कहा था ये गाड़ी मुझे वेस्टीज ने दी है। मुझे लगा इतना फेक रहे हैं ये इंसान, ये कैसे हो सकता है, मतलब साबुन तेल का बिजनेस करके कोई गाड़ी मिल जाती है क्या? तो वो बता रहे हैं, चेक दिखा रहे हैं अपना, देखो इतना आता है मेरे को पैसा, देखो ये करके। मैंने बोला जिंदगी भर इतना इतना सारा नौकरी कर लिया, 10-12 हजार से ऊपर का मुझे सैलरी नहीं आ रहा, और ये बंदे बोल रहे हैं कि इनको इतना इतना पैसा आता है, इनको गाड़ी आ जाती है, इनको फॉरेन ट्रिप आता है, ये कैसे? ये सेवनली नॉट पॉसिबल, ही इज ट्राइंग टू फूल मी। और ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, इसे जबरदस्ती मुझे मेंबर बनाने की, शायद ये मुझे लालच दे रहे हैं शायद। आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। तो मैंने बोला सर देखिए ये काम तो मुझसे होगा नहीं, आप अच्छा ही बोल रहे हो सकता है कंपनी आपकी अच्छी हो, लेकिन ये मेरे से शायद नहीं होगा। आई कैन नॉट कन्विंस पीपल, ये बात मुझसे हो ही नहीं सकता कि मैं जाके किसी को समझाऊं। तो आप सिंपली मुझे ये बोल दो कि गैस्ट्रिक का कुछ है तो दे दो। तो ही स्टार्टेड लाफिंग, तो बोलते कि तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। मैंने बोला कि सर टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है सर, आपका भी मेरा भी। सो आप मुझे सिर्फ गैस्ट्रिक का सामान दे दो एंड देखते हैं अगर काम करता है। तो बोलता है कि पुराना सा पुराना गैस्ट्रिक अल्सर भी ठीक हो जाएगा आपका। मैंने बोला कि कैसे? तो बोलते हैं आंवला, एलोवेरा एंड नोनी, 3 चीज आपको लेना होगा। और उन्होंने बोला कि इससे आपका बाल झड़ना भी रुक जाता है, आप ये होता है वो होता है। मैंने बोला सर मुझे बाकी सुनना ही नहीं है, मेरा गैस्ट्रिक ठीक कर दो बस, बस वो अगर ठीक हो गया तो मैं मान जाऊंगी कि आपका कंपनी का प्रोडक्ट काम करता है। तो मैंने बोला सर प्राइस कितना है? तो सर ने बोला एमआरपी इतना है। मैंने बोला ओके। तो बोलते एक काम क्यों नहीं करते, आईडी बना लो। मैंने बोला सर आईडी? तो बोलते हाँ आईडी बना लो, आईडी बनाने से यहाँ कुछ पैसा नहीं लगता, यहाँ देयर इज नो ज्वाइनिंग फीस इन वेस्टीज। सो आई सेड कि ओके, तो क्या करना पड़ेगा? तो बोला कि जब आपको वो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देने से आपका आईडी बन जाता है, तो आपको सब प्रोडक्ट 10 to 20% डिस्काउंट में मिलेगा। तो ही जस्ट वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट थिंग। और मेरे को भी उस वक्त वही सिर्फ समझ में आया था, 10 to 20% डिस्काउंट, और कुछ समझ में नहीं आया था। मैंने बस उनको कहा कि और एक बात कि आप क्या हर महीना सामान लेना पड़ेगा, आप कुछ ऐसा कुछ टारगेट लगाओगे? बोलता यहाँ वेस्टेज में कोई टारगेट भी नहीं होता, देयर इज नो टारगेट, नो ज्वाइनिंग फीस। तो बाकी वो एक्यूमुलेटिव वगैरह वो सब तो मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया था। तो वो बोल तो रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो तब मेरा क्या नुकसान है, आईडी कार्ड देने से अगर फ्री बनता है, 10 to 20% डिस्काउंट में सामान आता है तो फाइन है, चलो ठीक है। तो मैंने उनको दे दिया, उन्होंने आईडी बना दिया, और वो बंदा सामान दे के चला गया। बस बोलता है कि मैं हुजाई से ही सामान ले लूंगा आपके नाम पे। ओके। तो ही वेंट अवे and I started taking. But the very first reaction of my papa when I showed him that supplements and that catalog, पापा was dead against. पापा बोलते हैं कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये सब पता नहीं कौन से कंपनी का सामान है, ये सब पागल हो गई हो तुम, ये सब खाने से कुछ नहीं होगा, बहुत देख लिया ये सब। तो पापा was totally against it, मतलब ये हो ही नहीं सकता है, मतलब वो बिल्कुल, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर विल नेवर सपोर्ट पब्लिकली अबाउट ए नेचुरल सप्लीमेंट, वो कभी नहीं करते, अंदर छुप छुप के खाते भी होंगे, बट ऐसे ऐसे कभी पब्लिकली सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पापा वाज लाइक दैट ओनली। तो पापा ने उसमें तो अगेंस्ट थे, लेकिन आई गॉट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग दोस सप्लीमेंट्स, आई गॉट द रिजल्ट इन अबाउट, उन्होंने 15 दिन भी नहीं लगा था, मुझे 12 दिन में रिजल्ट आया था। जो मेरा ये सीने में जलन होता था, जो खट्टा खट्टा वो मतलब भाव एक आता है, मतलब सुबह सुबह हर दिन, वो इट्स लाइक मैजिकली इट्स गॉन, मैजिकली 12 दिन में इट वाज गॉन। तो मम्मी को काफी अच्छा लगा देखकर कि बेटी को सुकून है। तो माँ ने कहा कि तू कंटिन्यू कर इसको, तो उसके वैसे ही फिर माँ ने कंटिन्यू करने को कहा, मैंने कंटिन्यू किया। फिर मम्मी का अर्थराइटिस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मम्मी ने बोला इनको अर्थराइटिस का कुछ है क्या इनके पास? फिर मैंने सर को कॉल किया कि सर मम्मी को आज कर कि तेरा ठीक हो गया क्या जो मम्मी के लिए मांग रही है? मैंने बोला सर इट्स रियली मैजिकल, कुछ तो हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, एंड आई वांट कि मेरी मॉम को भी मैं दूं। तो मॉम को भी मैंने दिया, मॉम गॉट द रिजल्ट इन अबाउट 20-22 डेज। जो मम्मी बिस्तर से उतरने में इतना उनको प्रॉब्लम होता था बिकॉज ऑफ दैट नी पेन, नाउ तो शी लाइक मूव्स अराउंड लाइक एनीथिंग। सो ये रिजल्ट फिर मिल गया।
तब पापा को यकीन भी आया कि जब मेरा और मम्मी का रिजल्ट आ गया, देन पापा सेड कि दिखाओ कैटलॉग। तो जब कैटलॉग देखा तो पहले हार्ट का खोल लिया, बिकॉज 2012 में ऑलरेडी हार्ट अटैक हो रखा है, स्टन बिठाया हुआ है, और उनका फिर भी जो बिकॉज ऑफ हिज ईटिंग हैबिट्स उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा बहुत अप डाउन करता है। तो उसने खुद ब खुद देख लिया, बस अरे ये सब तो बेटा बहुत साइंटिफिक चीजें है। मैंने बोला आपको पहले ही बोला था, आप विश्वास कर नहीं रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये लेके आ जाओ। तो उनको उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं, दरअसल उन्होंने बस देखा कोएंजाइम Q10, फ्लेक्स ऑयल, LRG9, जो जो उनको चाहिए था, उन्होंने कहा ये तुम लेके आ जाओ। पापा ऑल्सो स्टार्टेड। सो पापा का भी रिजल्ट आया। तो दैट्स व्हाई मतलब अब समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैंने बोला कि प्रोडक्ट तो अच्छा है, अरे इसका राइस ब्रांड भी बड़ा अच्छा है, इसका जीटा टी भी बड़ा अच्छा है, अरे इसके लिपस्टिक भी अच्छे हैं, अरे इसका शैम्पू भी अच्छा है। तो इस तरह से वेस्टीज की एंट्री हो गई। सिंपल बात है कि वेस्टीज से आई वाज ए 100% कंज्यूमर। आई नेवर थॉट, मैंने सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं वेस्टीज इतना सीरियसली करके ये मेरा करियर बन जाएगा, यही मेरा लाइफ बन जाएगा, ये आई नेवर थॉट। ये अभी सोचने से अजीब लगता है। तो दैट्स हाउ ये शुरू हो गया। उसके बाद मामा माही सबको, जितने सारे मेरे खानदान, सबको मैंने बोला। तो पहला चेक 132 रुपीज का आया था, उसके बाद 600 आया था, उसके बाद 900 आया था, और उसके बाद आया था 1032। तो जिस दिन 1032 आ गया था, उस दिन मैंने फिर उस जमील सर को फोन किया था कि जमील सर पैसा आ रहा है। तो सर बड़ा हंस रहे थे, मतलब पैसा तो आएगा ही बेटा। मैंने बोला कि पैसा क्यों आ रहा है सर? तो बोलते कि तू काम कर रही है इसलिए। मैंने बोला सर क्या काम कर लिया? तो बोलते प्रोडक्ट यूज कर रही हो? मैंने बोला यस आई एम यूजिंग। तो बोले कैसा लग रहा है? मुझे वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, 100% सेटिस्फाइड कस्टमर, सामान बहुत अच्छा है। तो बोलते यही तो करना है अभी। अच्छा इस बात को तुमने किसी को बताया? मैंने बोला बताया मतलब खानदान में सबको बोल दिया, सबका आधार कार्ड पैन कार्ड व्हाट्सएप पे मंगवा लिया, आईडी खोल दिया। तो कोई डिब्रूगढ़ से सामान ले रहा है, कोई पंजाब से सामान ले रहा है, कोई कलकत्ता से सामान ले रहा है, तो ऐसा ही हो रहा है। बोलते यही तो करना है, तुमको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा, यही तो काम करना होता है इसमें। मैंने बोला ये करने से क्या होगा सर? बोलते ये करती रहोगी तो 10 देखना, ये तुम्हारा 10,000 हो जाएगा, 10,000 के बाद ये लाख पहुंच जाएगा, उसके बाद ये 10 लाख पहुंच जाएगा। मुझे हो गया हो गया। तो मैं बोली कि सर आप रहने दो, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट जो बात सर ने कही थी वो सच भी तो हुई है। अब लगता है कि ये कोई झूठ तो सर बोले नहीं थे। सर ने जो जो बोला वो ही तो हुआ, कि हाँ वो 10,000 भी हुआ, इसी से ही गाड़ी भी आ गई है, इसी से फॉरेन ट्रिप्स भी आ गए हैं। तो आज के डेट पे आई जस्ट फील दैट डेफिनेटली वेस्टीज इज अ ब्लेसिंग इन माय लाइफ। कि ये इसको आना था, इसको इतना जो मैंने ये झेला है, इतना जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था, इट्स बिकॉज गॉड वांटेड द बेस्ट थिंग टू कम टू माय लाइफ। वो चाहते थे इस बच्चा को बेस्ट दूं मैं, तो इसीलिए बेस्ट आया है। और मैं ये बात तो बस सबको ही बोलती हूँ कि मुस्लिम्स मजहर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं तो हम सिरनी लेते हैं वहां से ना, और अगर टेम्पल में जाते हैं तो वहां से कोई प्रसाद लेता है तो हम प्रसाद या सिरनी को बहुत ही रेस्पेक्टफुली ग्रहण करते हैं, राइट? तो मुझे तो ये लगता है कि मैं हर किसी को ये एक्चुअली मैसेज देना चाहूंगी कि जिस जिसके हाथ में ये पवित्र गिफ्ट आ गया है, प्लीज प्लीज मतलब इसको रेस्पेक्ट से रखिए, इसको रेस्पेक्ट से ग्रहण कीजिए। ये आप सही में ब्लेस्ड हो, इसलिए ये आपके हाथ में आया है। लेकिन इसको अगर आप कदर नहीं करोगे तो मतलब आपसे ज्यादा अनलकी शायद दुनिया में कोई नहीं है। ये तो मुझे ऐसा वाला फीलिंग आती है आज के डेट पे। सो आई रियली फील ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट वेस्टीज इज नाउ पार्ट ऑफ माय लाइफ। ओके ग्रेट ग्रेट मदिहा, ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड क्या होता है ना, वैसे ही एंट्री होती है, सब कोई बेसिकली समझ के ये बिजनेस में नहीं आता है। जब मैंने भी पहला दफा इस बिजनेस में आया था, इट इज लॉन्ग स्टोरी, ये लोगों को पता है कि 21 साल पहले 1999 में जब मैंने पहला मेरा नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, और अनफॉर्चुनेटली दैट प्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय गौतम बली सर ओनली। हम लोग के एमडी सर ही नहीं वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब उस कंपनी में वो काम करते थे। तो मेरे दोस्त मेरे को लेके गया, एक मेरे को जाना नहीं था, बट फिर भी हम लोग 4-5 दोस्तों को साथ में लेके गया और बोला था कि नेक्स्ट डे वो फिल्म दिखाएगा, एक मूवी दिखाएगा। और एक मूवी देखने के चक्कर में उसके साथ मीटिंग में अटेंड करने के लिए चला गया था, क्योंकि वो उसके अपलाइन बोला था कि तुमको 3-4 गेस्ट लेके आना है। तो उसने बोला है कि यार कुछ नहीं करना है, जाके एसी में बैठे रह गया और नेक्स्ट डे आई विल शो यू ए मूवी। तो एक मूवी के चक्कर में चला गया था नेटवर्क मार्केटिंग की एक मीटिंग सुनने के लिए, और मेरा जिंदगी बदल गया। सो लोगों का बेसिकली लाइफ में वैसा ही होता है कि एक ब्लेसिंग्स होती है। और आपका तो आप जैसे एक्सपीरियंस तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपने इंश्योरेंस में भी काम किया, आपने तरह तरह का बहुत स्ट्रगल किया जिंदगी में, और आप इस मकाम पे आ चुके हो। सो जब आपने स्टार्ट किया, जब आपको जमील सर ने बताया कि ये बिजनेस इस तरीके से करना है, तो व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, क्या मतलब ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आया जो आपको लगा बेसिकली टू रिकमेंड दिस बिजनेस, टू डू दिस बिजनेस, टेकिंग दिस बिजनेस प्रोफेशनली? जब आप प्रोफेशनली इस बिजनेस को आप करने स्टार्ट किए थे, तब आपको किस तरीके का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा?
एज ए वुमेन बेसिकली हम लोग की कंट्री में तो कुछ डिफिकल्टीज तो है ही है, बट क्या था आप अगर शेयर करते हो तो? सर देखिए, आज मैं बोलूंगी कि दैट यू शुड फोकस ऑन द गोल, यू शुड नॉट फोकस ऑन द ऑब्स्टेकल्स। आज मैं बोलती हूँ, ये बात मैं पक्का बोलती हूँ, लेकिन जब वो फेज शुरू होता है तो तब समझ में आता है कि सही में ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं और बहुत आते हैं। और मुझे यही बात है ना सर कि आज वेस्टीज में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, पर क्या 2 करोड़ लोग सफल हैं? क्या 2 करोड़ लोग सफल नहीं है? 2 करोड़ में से सफल कौन नहीं है? वो जिन्होंने उन ऑब्स्टेकल्स के सामने अपना घुटना टेक दिया। Those who quitted, those are the ones जो सफल नहीं हुए। पर उनमें से कुछ ही जन है या कुछ हजार या कुछ ऐसे होंगे जो उन ऑब्स्टेकल्स के पीछे उन्होंने अपना घुटना नहीं टेका, उन्होंने बोला कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, करना है तो करना है। तो उस सेंस में आगे बढ़ा, वही यहाँ पर सफल लीडर्स के तौर पर उनको गिना जा रहा है, उनका नाम जाना जा रहा है। जैसे मैं आपको पक्का बोलूंगी कि उनमें से आप पक्का एक हो, हीरक सर, क्योंकि मुझे अच्छे से पक्का सर, क्योंकि आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू एंड यू आर रियली रियली हेल्पफुल इन मेनी वेज। बिकॉज आपको पहले बार मैंने देखा था हमारे गुवाहाटी सेमिनार में, आप आए थे, यहाँ पर सक्सेस सेमिनार था आपका, तो आपके उस सेमिनार से मुझे अच्छा ज्यादा इसलिए लगा आपका सेमिनार देख के, बिकॉज वी आर फ्रॉम द सेम फील्ड। तो आप भी जैसे मीडिया से जुड़े हुए हो, आपने मीडिया रिलेटेड बहुत सारी बातें वहां पर बताई थी, तो आई गॉट सो मच कनेक्टेड विथ यू कि नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही है, सेम सेम सही है। तो आज सर इतना बढ़िया कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी एक ना एक दिन जरूर अच्छा करूंगी ही करूंगी। और वैसे भी बाकियों में भी आपने, जैसे कि मेरे बांग्लादेश का कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप बहुत सपोर्ट करते हो, तो यू आर डेफिनेटली, मतलब थैंक यू सो मच सर फॉर दैट, आप बहुत सपोर्ट करते हो। तो ऑब्स्टेकल तो डेफिनेटली सर आएगा, ये बात तो है। अब जो मेन ऑब्स्टेकल आता है, ना सुनने का आदत तो पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो यही चीज है कि आपको ना सुनना पड़ेगा। मतलब ना 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 ना, उसके बाद एक हाँ, आपसे सिखाया सर, फिर ना 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 ना, उसके बाद एक हाँ, उसके बाद ना हा ना हा ना हा होगा, उसके बाद हाँ हाँ होगा। लेकिन पहले तो बहुत सारे ना ही आएंगे ना सर। तो ना सुनने वाली आदत बहुत ही, मतलब पहले बड़ा इरिटेशन हो जाता था कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है इनको, क्यों समझ, इतना इतना इजी कॉन्सेप्ट है, दुकान चेंज करना है, ये करना है, बस इतने बात को इनको इतना समझाना क्यों पड़ रहा है। तो लेकिन अब वही बात है ना सर, सबके नसीब में नहीं है वेस्टीज। दैट्स व्हाट मैं बार बार ये भी बोल देती हूँ, एंड वेस्टीज इज फॉर गुड पीपल। तो ये अगर किसी को बोल दो ना तो बड़ा उनको लगता है कि थैंक यू सो मच सर, बट एक्चुअली आई अंडरस्टैंड वेस्टीज इज फॉर गुड पीपल। ये अगर बोल दोगे तो उनको वैसे ही करंट सा लगता है कि ये क्या बोल गई है। लेकिन सच है कि वेस्टीज इज फॉर गुड पीपल। सो ऑब्स्टेकल्स मेनली तो होना ही पड़ेगा ना सर, आपको अच्छा आदमी होना ही पड़ेगा। जहां आपका अपना विकास के साथ आप लोगों के दूसरे के विकास के बारे में जब सोच रहे हो, यू आर ए गुड पीपल, यू आर ए गुड पर्सन, दैट्स व्हाट। तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, अगर वो बात किसी को नहीं समझ में आए तो उसकी, मतलब शनि चल रहा है उसका, बहुत बड़े भयंकर ग्रहण चल रहा है उसका। तो ऑब्स्टेकल्स मेनली क्या क्या फेस किया है, लोगों की ना सुनी है बहुत ज्यादा। लड़की होना, ऑफ कोर्स आई से दैट, जैसे मूवी में कहा जाता है कि हमारी छोड़ी छोड़े से कम है क्या है, सही बात है, कम तो नहीं है लड़कियां, किसी क्षेत्र में भी लड़कियां कम नहीं है आज। लेकिन फिर भी वी आर समवट, कुछ कुछ में जैसे रीजंस में आता है प्रॉब्लम्स। आप जैसे कि आप रात को 11-12 बजे जाके तो आप मीटिंग्स नहीं कर सकते हो, कहीं कहीं कुछ कुछ, मतलब कुछ कुछ सिक्योरिटी रीजंस है, वो आपको देख दाख के चलना पड़ेगा, फैमिली की बातें होती है, आपको बताना पड़ता है कहाँ हो कहाँ ना हो, तो बहुत सारी बातें हैं सर, वो सबके साथ ही आपको काम करके आगे निकलना पड़ेगा। एंड फिर आपको ऑब्स्टेकल्स ऐसे भी आ जाएंगे कि आपको हौसला अफजाई करने वाले कम मिलते हैं, आपका टांग खींचने वाले ज्यादा लोग मिलते हैं, ये एक प्रॉब्लम आता है आपको। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स ही हैं जो आपकी काफी मजाक उड़ाएंगे, आप मजाक का पात्र बन जाएंगे, आपको पागल बोला जाएगा, बहुत ये पागल हो गई है, वेस्टीज आ गई, वेस्टीज आ गई, ऐसे इरिटेशन, मतलब मुझे देख के भाग रहे हैं लोग, मतलब ना ऐसा हो रहा है कि शादी ब्याह में अगर गई तो अरे आ गई वेस्टीज आ गई, वेस्टीज आ गई, अब निकल, अभी फिर वेस्टीज शुरू करेगी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ वायरस है वेस्टीज जो मैं उनको लगाने आ गई हूँ, उनको ऐसे वाली फीलिंग, तो दोस्त सम ह्यूमिलेशन वाली फीलिंग्स तो आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कुछ कुछ अच्छे फ्रेंड्स जिनको मैं सोचती थी कि वो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट आज के डेट में वो मेरे लिस्ट में ही नहीं है, वो गायब हो चुके हैं, ऐसे भी हैं कई, बिकॉज ऑफ दिस ऐसा भी हुआ। फिर ऐसा भी बात सुनने को मिला, अपने पे आती है तो इतना बुरा नहीं लगता, बट अगर कोई अब्बा को बोले कि आज डॉक्टर हुसैन कर्नेल का इतना बुरा दिन आ गया है क्या, बेटी को साबुन तेल के बिजनेस में लगा दिया, कुछ इस तरह की बातें भी आती है कानों में, तब बुरा लगता है कि अब्बा को कोई क्यों ऐसा बोलेगा मेरी वजह से। कुछ इस ढंग से बातें भी, मेरे अपने जो चैनल के फ्रेंड्स थे उन्होंने भी ऐसे कहा है, कलीग्स ने भी कहा है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, देखो ये क्या बोलते हैं, ये टीवी की वहां से जहाँ आती थी, सीरियल्स करती थी, ये करती थी, ये न्यूज पढ़ती थी, आज जाकर ये बोलते साबुन तेल के बिजनेस में लगे, इसके इतने बुरे दिन आ गए। तो इस ढंग की कई बातों ने, बहुत लोगों ने रिजेक्ट भी किया, जब ये बात समझाती हूँ तो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। लेकिन ये भी देखा कि जब मेरा पहला थाईलैंड वाला ट्रिप हुआ था
या मेरा मलेशिया वाला जो मेरा सेकंड स्टार क्रूज का ट्रिप हुआ था, तब वही फ्रेंड्स भी फोन करके ये भी बोल रहे थे, क्यों अकेले अकेले ही घूमोगी क्या, हमें लेके नहीं जाओगी क्या? तो तो वो दिन भी देखा है। तो कहाँ गया तेरा गाड़ी, बोलती थी ना गाड़ी आएगा, तेरा गाड़ी आएगा, मैसेज करने से गाड़ी आएगा, क्या हो गया 3 साल हो रहे थे तो गाड़ी नहीं आ रहा, इस ढंग की बात भी सुनी। लेकिन जब गाड़ी आ गया तब उनका सेलो टेप भी लग गया। तो योर सक्सेस विल डेफिनेटली स्पीक, दैट्स व्हाई, मतलब बट यू नीड टू बी पेशेंट। बात वो है कि पेशेंट होकर बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कुछ मतलब वो बोलते हैं ना, गौतम वाली सर भी बोलते हैं बार बार ये बात, हमारे एमडी सर ये हमेशा बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहरा होना पड़ेगा यहाँ पर, कि आपको यहाँ वहां से कौन क्या बोल रहा है नहीं आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब वो बस करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, सक्सेस आएगा ही आएगा। मतलब यू नीड टू मतलब स्टिक मतलब कुछ भी हो जाए, पेशेंस तो चाहिए सर, पेशेंस तो आपको अच्छे से पता होगा कि इतने जल्दी यहाँ पैसा भी इतना जल्दी आता नहीं है, तो उसमें भी कई लोग दम तोड़ते हैं सच बताऊं तो, क्योंकि पेशेंस ही नहीं होता, क्या हो रहा है इतना कष्ट कर रहे हैं कुछ तो आ ही नहीं रहा है, ऐसे वाली फीलिंग। लेकिन जो जो स्टिक कर गया है सर वही उसका सितारा चमक रहा है सर। तो ऑब्स्टेकल्स इस तरह से भी है। और बाकी कुछ कुछ होते हैं सर, जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम में हमें कहा जाता है कि आप प्रोस्पेक्ट्स खोज सकते हो, तो उसमें खोजा भी जाता है, लेकिन उसमें फिर कुछ क्या बोले मतलब क्या अजीब टाइप के एलिमेंट्स आते हैं जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ दूसरा ही उनका बातों करने का उनका जो फ्लो है कुछ अलग तरफ जाता है। बट वी लेडीज या वी गर्ल्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्स सेंस होता है हम लोगों का, कि वी कैन गेस कि आप किस ढंग में बात करना चाहते हो, तो वो हैंडल करना तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस केसेस को हैंडल करते हो। यू कैन बी लाइक पहले ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो कि आप यहाँ पर बिजनेस के लिए हो, ये डेटिंग साइट नहीं है, दिस इज नॉट ए डेटिंग साइट आउट हियर, ये सीरियस बिजनेस है, यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो और मेरी जिंदगी सुधर रही है, आपका भी जिंदगी सुधर जाए इसलिए आप मेरे साथ आइए। आपको मतलब वो तो पहले ही क्लियर कर, मेरा अगर पर्सनली बोलो तो मैं ये चीज को क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद ऐसे आए भी हैं बहुत सारे लीड्स सोशल मीडिया के थ्रू मिले भी हैं मुझे, जो अच्छा काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बदतमीजी जारी रहती है तो फिर मार्क जुकरबर्ग सर ने बड़ा ऑप्शन अच्छा ऑप्शन दे रखा है, यू कैन सिंपली ब्लॉक। तो आप ब्लॉक कर सकते हैं सिंपली सर। सो वो तो है ही, देखिए हर आपको हर तरीके का लोग मिलेगा, दैट इज दिस इज अ बिजनेस, सो बिजनेस में हर तरीके का लोग मिलता है। बट ये बहुत अच्छा लगा कि ये आपके साथ भी जो होता है वो हम लोगों के साथ भी हुआ है, और मुझे लगता है कि हर नेटवर्क के साथ ही होता है वो। उनके रिलेटिव्स में जब तक आपके पास वो सक्सेस नहीं आता है तब तक ये आपको सुनने का आदत डालना पड़ेगा। क्या होता है ना, जो बेसिकली जब आप लोग क्यों फेल्यूर होते होते हैं, उसका पहला रीजन मुझे लगता है यही है कि उनको ये रिजेक्शन या उनको किसी की वो जो ह्यूमिलिएशन या जो उनका जो ईगो में जो हार्ट होता है, वो लोग की बोल रहे थे तू साबुन तेल का बिजनेस कर रही है, तू तेरे को अभी लोगों को घर घर जाके के सामान बेचने का बिजनेस कर रहा है, बिकॉज डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस बिजनेस ऑल अबाउट। मैं उस दिन एक मीटिंग कर रहा था मेरे एक बांग्लादेश टीम के साथ, और वहां पे एक बंदे ने मेरे को टेक्स्ट में लिखा चैट में कि सर मैंने एक मेरे दोस्त को इस बिजनेस के बारे में अप्रोच किया, और उन्होंने मेरे को बोला तुम मेरे को एमएलए में अप्रोच कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से उसने बताया कि मेरे को इतना इंसल्ट लगा और इतना इंसल्ट किया कि फिर मैंने उनको क्या बोला, मैंने जाके यूट्यूब में गया, जाके वहां पे उनको एक वीडियो दिखाया। मैंने बोला देखिए एक बंदे का वीडियो देखिए, वो नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में क्या बोलता है, ठीक है। तो फिर मैंने सर्च किया बिल क्लिंटन ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। तो मैंने उनको बताया आप जानते हैं ये कौन है, तो बोल रहे हैं हाँ जानते हैं, ये तो है एक्स फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएसए का। तो मैंने उनको बोला कि आपकी दोस्त क्या इनसे भी बड़ा है, तो बोलते नहीं। तो सुनिए वो क्या बोलता है नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में। क्या है, लोगों के पास जो एक एजम्पशन है, ये एक बात है कि एजम्पशन इज द मदर ऑफ एवरी प्रॉब्लम। लोग पहले से ही एज्यूम कर लेता है। क्यों एज्यूम कर लेता है? क्योंकि उसके साथ शायद कोई खराब चीज हुआ होगा, या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उनको पता ही नहीं है। बट नेटवर्क में मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारे स्कैम भी हो चुके हैं। बहुत सारे कंपनीज जो है, जैसे कि मैं 21 साल से हूँ, मैंने बहुत चीज देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, क्योंकि लोगों को सही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, इसीलिए लोगों को बहुत गलत कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लूटा है। तो शायद उनके पास वो खराब एक्सपीरियंस रहा होगा। बट मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक अच्छे चीज को आपकी खराब एक्सपीरियंस के लिए आप एक अच्छी चीज को खराब नहीं बोल सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस खराब था क्योंकि आप शायद राइट कंपनी में नहीं थे, शायद आपने इस मार्केटिंग के बारे में सही स्टडी नहीं किए थे,
तो फिर मैंने बोला आप उनको ये वीडियो भेजो और उनको आप बताओ कि आपके बारे में, उस कंपनी के बारे में अगर आपका फीलिंग्स खराब है तो सही है, बट नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका फीलिंग्स खराब नहीं होना चाहिए। तो मैं हर बंदे को यही बोलता हूँ, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस है, लोग आपको पहले ताना मारते थे, लोग पहले आपको बोलते थे कितना, बोलता है कितना आमदनी हुआ, कितना कमाई हुआ, आपने जो बताया गाड़ी, आपका गाड़ी कब आएगी, अब जब गाड़ी आ गया तो सेलो टेप लग गया। तो फिर लोग लोग मतलब लोग तो बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना और कुछ कहना। ओके मैम, आप थोड़ा बताइए कि में ये तो प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने सुना, आपने जब सीरियसली बिजनेस को काम स्टार्ट किया, व्हाट आर द प्रोसेस यू हैव फॉलोड, आपका सक्सेस स्टोरी क्या है? अगर हम शॉर्ट में आपका वेस्टीज में जो सक्सेस स्टोरीज है वो हम बताना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, क्या है वो? मतलब मुझे मैंने क्या अचीव किया, आपने वो, आप वो जानना चाहते हो सर, मतलब नहीं, फॉलो क्या करके? क्या स्टेप, जैसे कि आपने पहले रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से अपने प्रोडक्ट्स शेयर हाँ। किया, फिर लोगों के साथ किस तरीके से काम किया, किन किन लोगों को आपने ज्वाइन कराया, किस तरीके से ज्वाइन, थोड़ा सक्सेस स्टोरी, और कितना पैसा आपने कमाया, फॉरेन ट्रिप तो हमने सुन लिया, आपका गाड़ी का भी सुन लिया, हाउ मच मनी यू कैन अर्न। सो क्या हो सकता है, बहुत सारे लेडीज जो है वो एक, आप उनके लिए, सिर्फ लेडीज नहीं सबके लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो, पर खास करके लेडीज लोग जो है, जो घर में बैठी हुई है, सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, वो भी शायद आपकी तरह वो जो सक्सेस प्रोसेस के अंदर आपने काम किया है वो फॉलो कर पाए। थैंक यू सर, आई अंडरस्टैंड। तो सर कुछ तो पॉइंट समझ में आपको आ ही गया होगा, मैंने पहले ही बताया कि आई स्टार्टेड जैसे एज ए कंज्यूमर, मैंने कंज्यूम करना शुरू किया सामान, और प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा तो जस्ट अपने जो फैमिली रिलेशन, जितने रिलेटिव्स हैं उनको अपना शेयर किया था कि प्रोडक्ट अच्छा है। और आज के दिन में कौन बीमार नहीं है, किसके घर में बीमारी नहीं है, या कौन हेल्दी नहीं रहना चाहता, टू बी पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वे में कहूँ तो कौन हेल्दी रहना नहीं चाहता। और आज के दो कोरोना काल में तो अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, ये करना, ये बहुत जरूरी हो चुका है। अब इंसानों को खुद समझ में भी आने लग गया है, अब तो थोड़ा इजी हो गया है एक्चुअली बिजनेस, क्योंकि उस वक्त थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा था कि वाई सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, समझ ही नहीं आता है लोगों को। लेकिन आज तो खुद मांग मांग के ले रहे हैं, सीबकथॉर्न दे दो, आंवला दे दो, अब खुद मांग रहे हैं। तो ये चलो अभी जो ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए अच्छा है, ये मैं तो बोलूंगी उनके लिए ये गुड पॉइंट हो गया। तो मैंने सक्सेस रूल फॉलो किया कि मैं 100% यूजर हूँ इस चीज की। पहला पॉइंट, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे घर में आपको सनसिल्क का शैम्पू नहीं आएगा, मेरे घर में आपको कुछ दूसरा जो चीज वेस्टीज में है, ऐसा नहीं कि जो कुछ तो नहीं है, तो अगर कुछ, अब तो चलो बेस्ट डील के चलते वो सब भी आ चुका है, लेकिन जो जो वेस्टीज में है वो चीज ही मेरे घर में आएगा, वो चीज मैं भी खुद फॉलो करती हूँ। और एंड आई मेक इट श्योर कि मेरे जितने भी एक्टिव डाउनलाइंस हैं वो इस बात को पूरा फॉलो करें कि उनके घर में भी 100% वेस्टीज आए। क्योंकि ये एक, इसके लिए एक शॉर्ट्स अगर मैं आपको शेयर करूं, तो मेरा जो पहला ट्रिप था वो था आपका थाईलैंड, जो पटाया ट्रिप था हम लोगों का। तो आई वेंट देयर, तो जो कि मैं सिंगल हूँ, तो मेरे रूम में एक लेडी थी, और वो बंगाली लेडी थी जो मेरे साथ थी, शी वाज आल्सो सिंगल। तो मैम और मैं एक साथ ही एक ही रूम में थे। तो नहाने की जो बारी आई, तो मैंने क्या किया, मेरे जो पाउच से वहां से मैंने अपना ये जो सनसिल्क का 1 रुपए का पाउच नहीं आता वो निकाला। तो मैं वो निकाल के नहाने जा रही थी हाथ में लेके, तो मैम ने वो देख लिया। मैम ने मुझे कहा यास्मीन, तो मैंने बोला एक ना आओ, तो मैं गई, तो बोले तुम्हारे हाथे की अच्छे। तो मैंने बोला क्या है, मैं थोड़ा डर गई, क्या बोल रही है। तो मैंने देखा कि अब मुझे समझ में आ गया एग्जैक्टली क्या हो चुका है। मैंने बोला मैम सनसिल्कर पैकेट কেন তোমার হাতে সানসিল্কের প্যাকেট কেন আছে, এই ট্রিপটা তোমাকে সানসিল্কে দিয়েছে? তো मैंने बोला कि तो मैं भी बड़ा नर्वस, मैंने बोला नहीं मैम, ये मतलब वो उसका बड़ा बोतल होता है ना मैम, तो ये तो छोटा होता है मैम, तो ये इजी होता है कैरी करने में। बहाना करो ना। बोला कि अगर बहाना करोगी तो जिंदगी में कभी तुम्हारा क्या लेवल है तुम्हारा अभी? तो आई वाज गोल्ड एट टाइम। तो बोले गोल्ड, जिंदगी में गोल्ड होके मरोगी तुम, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। बोलता कि जब तक तुम वफादार नहीं हो अपना कंपनी के प्रति, कि कंपनी तुमको एक ट्रिप दे रहा है, 5 स्टार होटल में रख रहा है, इतना आलिशान जगह में घुमा रहा है, फिरा रहा है, और तुम फिर सनसिल्क को धनी करके उस सनसिल्क का पैकेट लाई हो 1 रुपया में। तो दैट वाज क्वाइट एम्बेरसिंग एग्जैक्टली एट दैट टाइम। तो लेकिन मुझे अपनी गलती भी समझ में आई, आई सेड सॉरी टू हर, दो ना वो मेरी अपलाइन है ना कोई है, बट वी आर फैमिली, एंड फैमिली की तरह उन्होंने मुझे इतना अच्छा एडवाइस दिया। तो वो देखे मैं चलो नहाने तो चली गई, और नहाने के आने के बाद फिर मैम गई बाथरूम में,
और जब मैम बाथरूम से निकली मुझे इतनी शर्म आई एक चीज देखकर, क्योंकि मैम ने पूरा बाथरूम में तो ऑलरेडी जैसे कि 5 स्टार होटल्स में ऑलरेडी शैम्पू वगैरह सब तो दिया ही होता है, बट इवन देन मैम ने उस बाथरूम में पूरा हमारा बॉडी वॉश से लेकर शैम्पू से लेकर हेयर स्पा से लेकर एवरीथिंग फेस वॉश सब सजा के रखा है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं क्या बहाना कर रही थी खुद से कि ये सब जाऊंगी तो भारी हो जाएगा, तो मैं कैसे ले जाऊंगी। एंड द बेस्ट पार्ट सर मैं आपको ये बताऊं कि उस लेडी का अच्छा ये हुआ कि जो हाउस कीपिंग के बच्चे आते हैं ना वहां पर साफ करने के लिए, उन्होंने वो चीज गौर किया और उन बोले ये क्या कंपनी है, ये बात हो गई, उस मैम ने उनसे बात की और नंबर एक्सचेंज हो गया है। तो आई होप कि जब हमारा ये भी थाईलैंड और बैंकॉक में जब हमारा ये खुल जाएगा तो आई थिंक मैम का वो डाउनलाइन जरूर होगा शायद वहां पर। सो दैट्स द पावर। मतलब मैं तब सोची ओ माय गॉड ऐसे भी बिजनेस हो सकता है क्या, क्योंकि आइडिया ही नहीं है ना सर, आइडिया ही नहीं था, लेकिन उस वक्त ये मेरे को आइडिया दिमाग में आया कि देखो ऐसा भी किया जा सकता है। तो 100% वो इंसान की बात में बिल्कुल ही अभी 100% वेस्टिजियन हूँ, मेरे घर में दूसरा कुछ प्रोडक्ट नहीं आता। तो जो सर मतलब हमारा जो 7 स्टेप्स ऑफ सक्सेस है वो तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग लिस्ट नहीं बनाते। मैंने भी नहीं बनाया था सर, बहुत टाइम तक लिस्ट नहीं बनाया था, और जब तक मैंने लिस्ट नहीं बनाया था मुझे लगता है कि तब तक मेरे में मेरा कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है, जैसा फील आता था कि समथिंग इज मिसिंग, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगा था इसको कर लूंगी, इसको फोन कर लूंगी, उसको फोन कर लूंगी, लेकिन ह्यूमन माइंड है सर, इतना याद इसको नहीं रहता है जब तक अनटिल एंड अनलेस इट इज पेन डाउन हियर, तब तक वो सही है, अदरवाइज इतना याद फिर भी नहीं रहता है किसी को। तो प्रॉपरली मैं ये काम मैंने बहुत टाइम तक नहीं किया था। और सच बताऊं तो सर 3 साल तो टेक्निकली आप बोलोगे, लेकिन सीरियसली मैं 2 साल से ही लगी हूँ इसमें, क्योंकि 1 साल मेरे को ना समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। मुझे मुझे समझ, क्योंकि जो मेरे को जिन्होंने जमील सर ने ज्वाइन करवाया, ही वाज इन हुजाई, आई वाज इन गुवाहाटी, उनको पहले पहले शायद उनको भी नहीं लग रहा था कि ये काम इतना कर जाएगी, शायद ऐसा सोचा, क्योंकि सोचता तो कोई भी नहीं है पहले पहले कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो गलतियां बहुत सारी कर दी, डाउनलाइन 6 का जगह में मैंने नीचे एकदम 28-29 खड़ा कर दिया अपना डायरेक्ट, वो सब गड़बड़ करके रख दिया क्योंकि पता ही नहीं होता था ना सर कि ये सब भी होता है बोल के। तो सिस्टम फॉलो कुछ कुछ नहीं किया, जिस वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ था। तो अब जो फॉलो कर रही हूँ, और जो गलतियां खुद की है वो अभी अपने डाउनलाइंस को करने के बिल्कुल नहीं देती हूँ कि मैक्सिमम 7 लाइंस बनाओ। अभी के इस वक्त कोई जरूरत नहीं है मेरी तरह ये 28-29 लाइंस करके ये गड़बड़ मत करना तुम लोग, मैंने ये गलती करी है तो तुम लोग ये गलती ना करो, ये सिखाती हूँ उनको, तो ये भी वो कर रहे हैं। बाकी लिस्ट बनाना है, मीटिंग करना है, जो जो 7 स्टेप्स तो ऑफ आपको सक्सेस है वो ब्रोंज पूरा बनने फॉलो में करो। कितना दिन लगा था? ब्रोंज में वो अपना सामान लेते लेते ही और आहिस्ता आहिस्ता करते करते सर वो लग गया था 7 महीना, 7 मंथ्स लगा था सर 7 months में you become bronze, okay. मतलब ये फिर आप हंसोगे, 7 मंथ में जो हम लोग का तो था 10,000 पॉइंट पे ब्रोंज बनते हैं, मुझे हाँ, इतना भी नहीं पता था कि उस महीने जो क्वालिफाइंग 2001 पीवी होना चाहिए वो भी नहीं पता मुझे। मुझे लग रहा था 20% होने से ब्रोंज बन जाते हैं। मैंने बड़ा स्टाइल से करीम सर को फोन भी कर दिया था, सर मैंने ब्रोंज बन गया, बोला तुम्हारा इस वक्त कितना हुआ है, तो बोलते मैंने बोला 1400 पीवी, बोलते तुम्हारा क्वालिफाइड नहीं हुआ है अभी तक। तो उस दिन तो समझ में आया था कि ओ क्वालिफाइड के लिए 2001 पीवी चाहिए क्या तो ऐसा वाला सिचुएशन था। तो अब खुद सोचो, तो मैंने गिरते पड़ते मतलब सीखा है ना, इसलिए सर, इसलिए मुझे ये इट्स गुड ऑल्सो, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि इतना करते 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 इतना घिसा है कि आज के डेट पे मैं अपने डाउनलाइंस को वो गलती करने नहीं दे रही हूँ, पहले से जो मैंने कर रखा है वो मेरे डाउनलाइंस को नहीं करने दे रही हूँ सर। तो बेसिकली 100% यूजर होना ही पड़ेगा, थोड़ा बेशर्म बनना पड़ेगा, बेशर्म के इन द सेंस की आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए। बिकॉज आप कतरीना कैफ को देख लीजिए, आप करीना कपूर को देख लीजिए, वो लक्स साबुन का एडवर्टाइज कर रही है ना, उनके वो पापा जी का कंपनी तो है नहीं, पर फिर भी वो कर रही है, झूठ बोल रही है कि 10 में लक्स सुंदर त्वचा का राज, वो जिंदगी में अपने उनके घर में उनका नौकरानी भी शायद वो साबुन ना लगाए, लेकिन वो झूठ बोल के करोड़ों रुपया ले रही है। तो ये तो मेरी कंपनी है ना, तो मेरी कंपनी के बारे में अगर मैं खुद लोगों को नहीं बताऊंगी, दो जैसा कि हमारा कोई एडवर्टाइजमेंट तो टीवी में आता है नहीं, तो वी आर ऑल द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ वेस्टीज, तो हमें अपने कंपनी के बारे में लोगों को बताने में किस लिए शर्म आनी चाहिए, बिकॉज हम तो सच्चाई बता रहे हैं, वो तो झूठ बोल के बेच रही है, हम तो सच बोल रहे हैं लोगों को, तो सच बोलने में क्यों शर्म आनी चाहिए। तो मैं डेफिनेटली, अगर आप मेरा फेसबुक फॉलो करते हो तो आपने देखा ही होगा कि कुछ भी प्रोडक्ट्स हो कुछ भी हो, मैं बड़े खुला होके पूरा उसको ऐड करती हूँ, खुद अब वो मॉडल में खुद ही बन जाती हूँ। हम क्या कतरीना कैफ से कम है सर क्या, या आप शाहरुख खान से कम है क्या सर, कोई नहीं, हम हर एवरीबॉडी इज ए ब्रांड एम्बेसडर हियर इन वेस्टीज, एंड हम अपने प्रोडक्ट का अगर प्रचार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। तो व्हाट्सएप के स्टेटस में देख लीजिए, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे देख लीजिए, आप इंस्टाग्राम में देखो, आप फेसबुक में देखो, मैं सोशल मीडिया को फुल यूज कर रही हूँ सर, आई एम यूजिंग सोशल मीडिया टू इज फुलेस्ट एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स एज वेल। ओके। तो इसके बाद पहला फॉरेन ट्रिप आप मतलब कौन सी ईयर में आपको पहला फॉरेन ट्रिप था? सर 3 साल ना सर, 2018 वाला, हाँ 18,
क्योंकि सही सर 18 तो हमारा स्टार क्रूज था, 17 सर। हाँ 17 में आपने पहला मतलब हम्म। इस बिजनेस स्टार्ट करते हुए 1 साल में आप फॉरेन ट्रिप भी आप हाँ हाँ ले लिया। अचीव कर चुके थे। हाँ ओके हाँ ग्रेट। क्योंकि और फिर सिल्वर बनने में टाइम ही नहीं लगा था सर, फिर सिल्वर फिर नेक्स्ट 2 महीने में हो गया था। हाँ ओके सो इस बिजनेस से मैम आपका हाईएस्ट चेक कितना था और हाउ मच मनी यू हैव अर्न फ्रॉम वेस्टेज, अगर आप बोलना चाहो तो। सर ऐसा तो इसका नहीं कि आंसर आपको देना होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, बट इफ यू वांट टू। सर इतना ही मैं बोलूंगी कि सर जब न्यूज पढ़ती थी तो जैसा कि मैंने बताया 500 रुपया भी काम किया है, 2.5 वाला भी काम किया है। आपको मैंने जो हाईएस्ट चेक था वो 10,000 तक था जब न्यूज चैनल में कर रही थी काम। तो आज की डेट पे अगर 3 साल का आप एवरेज अगर आप लगा लो तो इट्स मोर देन लाइक 10 लाख, मैं इतना बोलना चाहूंगी। सो वो अगर मैं उस 10,000 के उस पर काम करती तो आप उसी का अंदाजा लगाइए, कहाँ 3 लाख कहाँ 10 लाख, तो वही है, दैट्स द पावर। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी सर। ओके अच्छा, कभी कभी क्या आपको कभी लगा ऐसा कोई इमोशनल इंसिडेंट, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ आपको लगा कि मेरे को वेस्टेज नहीं करना है, आपको क्विट करने का मन हुआ कभी? इस बारे में तो मैं यही बोलूंगी सर कि जितने जन यहाँ पर सीरियसली काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हर किसी के लाइफ में ये वाला टाइम तो आता है, आता है, हर किसी के उसमें आता है सर। क्योंकि और अगर वो नहीं आ रहा है ना सर, अगर वो किसी के लाइफ में ये वाला पीरियड नहीं आया, दैट मींस ही इज एक्चुअली नॉट वर्किंग। जब तक आपके काम में आपको विरोध नहीं मिले, उसका मतलब ये है कि आप काम नहीं कर रहे। विरोध का होना बहुत जरूरी है सर। ऑब्स्टेकल्स से विरोध में आएंगे और आपको एकदम लगेगा कि यार क्या कर दिया, गलत जगह तो नहीं आ गया, नौकरी ठीक था क्या, ये कहाँ फंस गया, मैं तो फंस गया हूँ, ये क्या लोगों को पता नहीं रहा, कोई तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। तो ये बात अगर जब आप बोलने शुरू कर दो तो इसका मतलब एक बात तो आपने आपको आंसर दे रहे हो, दैट मीन्स यू आर वर्किंग, दैट्स व्हाई दिस थिंग्स आर कमिंग। अगर आप घर बैठ के सो रहे होते तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रहा। नहीं आते। आप निकले हो, आप निकले हो काम पे, फील्ड पे आप उतरे हो, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सो से वेलकम टू दिस नेटवर्क वर्ल्ड, नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ल्ड में आपका वेलकम है। एग्जैक्टली उसी दिन आपका वेलकम है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो आई हैं, और इमोशनल भी, लड़की हूँ तो कुछ ज्यादा वैसे भी इमोशनल भी हूँ। कुछ कुछ बातें सच में दिल में बहुत लग जाती है। जैसे कि पहले पहले स्टार्ट जब किया था तो वो बातें बड़ा चुपती थी, पापा को अगर कोई ऐसा बोल दे तो बहुत दुख लगता था। उसके बाद कहीं जगह इतने दूर जाकर मीटिंग किया, कितने दूर, पहले मेरे एक एक्टिवा हुआ करती थी, तो वो एक्टिवा लेकर ही मैं कितना मीटिंग्स किया। तो जब जाती थी, एक आंटी के घर गई थी, आई स्टिल रिमेम्बर, तो उनके घर में गई तो उन्होंने तो एक कप मतलब चाय तो दूर की बात, उन्होंने एक कप पानी भी पूछा नहीं था। तो जो जो लेके गई थी मेरी डाउनलाइन, उसके साथ ही मैं गई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा अजीब सा बिहेव किया। उसका फिर भी चलो पता, हाँ ठीक है आया तो बता दो क्या बताना है, तो पूरा समझाया जब, तो समझा के बोलते कि देखो ये सब तो मेरे को लेना नहीं है, लेकिन चलो इतने दूर से तुम आई हो, तेल वेल खर्चा करके आई हो, एक पीस साबुन दे दो। मतलब एश्योर साबुन 35 रुपीज का लेके वो मेरे पर एहसान कर रही थी कि बहुत बड़ा काम, अच्छा। मतलब कि तुम आई हो। तो दैट वाज काइंड ऑफ एन, शी वाज इंसल्टिंग मी कि देखो ले लो, एक साबुन एक पीस ही दे दो। तो उस ढंग का। फिर और एक जो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो और एक बात आती है, आजकल कुछ ज्यादा ही आने लगी है, कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने डाउनलाइंस को बहुत प्यार करते हो, वो टीम अच्छे से ग्रो कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन अचानक वो हाईजैक हो जाता है टीम। तो ये हाईजैक वाला सिचुएशन बड़ा ही एक्चुअली बहुत हर्ट करता है, बिकॉज आप बहुत मेहनत करते हो एक टीम में, अपना बहुत प्यार देते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत अपना मानते हो, और उसके बाद अगर अचानक कोई आपको धोखा करे तो वो भी बहुत दुख लगता है। तो इस तरह से मेरे 2 टीम गड़बड़ हुआ सर, 2 टीम, मेरा 2 टीम बैठ गया था सर ऐसा। तो जिस दिन उन्होंने ऐसा किया था, मेरा अचानक आप फेसबुक खोलते हो और फेसबुक में वो दूसरी कंपनी का एड डाल रहा है, तो डेट वॉज सच, मतलब अरे कल तक कब किया इसने ये काम, मतलब अंदर अंदर ही कर लिया, अंदर अंदर करके वो पूरा टीम ही गायब हो गया। और मेरी जो गलती थी, जो अगेन मैं सबको सलाह दूंगी इस बारे में थ्रू दिस प्रोग्राम, कि आप जब अपना जो ऊपर के जो सिंगल, ऊपर के जो डायरेक्ट डाउनलाइन है उनको तो डेफिनेटली देखिए, बट डेप्थ तक ना रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। वो जो बाली सर जो बोलते हैं 6 का 6 नीचे तक जो जाना होता है, वो इसलिए जरूरी है, बल्कि मुझे आज समझ में आता है, बिकॉज मेरे को पहले ये समझ में नहीं आता था, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले में सबसे बातें करती रहती थी, और नीचे में इतना कुछ गड़बड़ हो जाता पता ही नहीं चलता था। तो नीचे का जब पूरा टीम निकल गया, तब आज समझ में आ रहा है कि ओ, अगर मैंने वो नीचे से अगर रिलेशन बना के रखा होता तो आज शायद वो मेरे साथ, एटलीस्ट वो तो शायद मेरे साथ जुड़ा होता। तो ये भी बहुत हर्ट करता है सर जब ऐसा होता है, क्योंकि आप इतने काफी मेहनत डालते हो अपने टीम में, और अचानक अगर वो भी मतलब प्रलोभन देकर, और मुझे भी पता भी है ना कि तुम गए भी हो जिस कंपनी में, वहां तुम्हारा फ्यूचर है ही नहीं, आई ऑल्सो नो दिस ऑल्सो, तो वहां जाकर तुम बेकार में अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। बट उस वक्त तो अभी पट्टी पड़ गई है, तो अब वो सुनेंगे भी नहीं, तो चलो उनको अपना एक्सपीरियंस लेने दो। तो आज के डेट पे अब मैंने वो सब सोचना छोड़ दिया है, लेकिन बुरा तो लगता है सर, क्योंकि मेहनत होती है आपकी उसमें। तो मेहनत में वही तो पानी चीज फेर। बेसिकली, आप हर किसी को सक्सेस नहीं दिला सकते हो,
क्या ना, लोगों का जी। सोच बहुत सारे लोग कौन जाते हैं बेसिकली जो अपने आप को एक जगह पे प्रूव नहीं करना होता है। आप एक नेटवर्क मार्केटिंग से दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में जाके आपको करना क्या होगा? सेम ही काम ही तो करना होगा। वो आपको सेम ही एग्जैक्टली। कुछ आपको प्रोडक्ट रिमूव करना होगा, आपको मतलब लोगों को जुड़ना होगा। बट द प्लान बिकॉज़ एक्सक्यूज़ मी, मैंने 21 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया है। वेस्टीज के पहले मैं 2 कंपनी में काम किया है और वहाँ पे मैं सक्सेसफुल था। ऐसा नहीं कि मैं मतलब वहाँ पे फेल्योर होके वेस्टीज जॉइन किया। आई हैव जॉइन्ड वेस्टीज बिकॉज़ आई हैव सीन द सक्सेस दूसरे कंपनी में जो नहीं कर पा रहे थे। आज इंडिया में बहुत सारे कंपनीज़ है जो 25 साल, 26 साल काम कर रहे हैं। 25, 26 इयर्स, बट वहाँ पे ये सक्सेस कहाँ हुआ है? आप सोचो, सिर्फ गुवाहाटी में डॉक्टर करीम के पास है लग्जरी कार। कितने लग्जरी कार्स आसिफ भाई के पास है। आसिफ तो सर के पास हाँ, है। तो इतने सारे लोग जो गाड़ी लिया है, ऐसा कोई कंपनी का नाम आप बता सकते हो जो असम में इतना मतलब कार अचीवर्स है? नहीं है। 6 ऑडी वेस्ट है, बंगाल 2 में मर्सिडीज बेंज है। हाँ। ऑडी है, मर्सिडीज बेंज है, बट मर्सिडीज बेंज है। वेस्ट बंगाल में भी है। या पूरा इंडिया में जो सक्सेस वेस्टीज ने क्रिएट किया है, बाली सर ने मेरे को वही चीज दिखाया था कि जो सक्सेस यहाँ पे बन रहा है वो हीरोक दूसरे किसी कंपनी में या जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो वहां पे ये है क्या? हम लोग कमा रहे थे, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं थे इनकम में, बट कमा रहे थे, बट लोग नहीं कमा पा रहा था। सो वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जितना दिन ज्यादा आप बिताओगे उतना इसका रस उतना इसका मतलब आपके पास वो हानि आपको मिलेगा जितना दिन आप ज्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड करोगे। सो दिस इज एन, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ये समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी आके क्या दिखाता है कि आपको रातों रात अमीर बना देगा। और हम लोगों की मन में एक इच्छा तो ये रहता है कि हम घर में सो जाऊं और सुबह उठ के देखूं कि मेरे पास बहुत पैसा आ गया, मेरे बैंक में बहुत पैसा आ गया। पर वो बेसिकली जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो आपको बताएगा कि ऐसा होता नहीं है। आपको कमाने के लिए आपको मतलब जम के काम करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। ओके मैम, हम लोग करीब करीब मीटिंग में एंड तक आ चुके हैं। आप बता रहे थे कि आप एक वीडियो दिखाएंगे, आपका कुछ क्लिपिंग्स दिखाएंगे, तो आप अगर शेयर करना चाहेंगे, मैं आपको को होस्ट बना दिया है, सो यू कैन शेयर दिस। ओके सर। सर दिख रहा है कि नहीं, आप मुझे हाँ, बताइए। दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके। तो सर मैं जैसे कि बताया कि पहले तो मैं सर क्या थी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये था मेरा, दिस वाज मी सर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिख रहा है इसलिए सर? आपको मतलब आपका स्क्रीन शेयर हुआ, बट आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको पहले मतलब स्क्रीन में डालना होगा, देन यू हैव टू शेयर, तो वो वीडियो चलेगा। हाँ हाँ सर, 1 मिनट से न्यू शेयर करके राइट स्क्रीन पे आके नहीं दिख रहा सर। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, खबर अरुणाचल दिख रहा है। लाइव में थोड़ा बाद में आएगा बस। ओके ओके सर। माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। पूर्व वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण पुलने की सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करने की जैसे कसम खा ली है। पूर्व वित्त एवं स्वास्थ्य मंत्री सो दिस वाज मी सर। ये मेरा Okay. न्यूज़ का है सर। और बाकी ऐसे सर बहुत सारे हैं वैसे तो, जैसे कि ये है मेरी कार सर जो मैंने अचीव की है इस चीज के थ्रू। तो दिस इज द कार एंड दिस इज द लव एंड रिस्पेक्ट जो एक वेस्टिजियन को मिलता है सर। ये चीज आपको और कहीं नहीं मिलता। शी इज वेरी एक्टिव डाउनलाइन। शी इज मोर देन 60 years old, मिसेस निवेदिता डोले, गोल्ड डायरेक्टर।
Okay. एंड इनका जोश मतलब सही में काबिले तारीफ है। तो कितने लोग सर, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट वेस्टीज व्हाट आई फील इज कि यहाँ पर कोई क्रॉस लाइन वगैरह वाली बात होती नहीं है। मतलब यहाँ पर कितने लोग आए हैं, कितने लोग आए हुए हैं। आसिफुर सर इज देयर, जो मेरे कार के उस पे आए थे, ये है मिसेस जमील अहमद सर, इनको मेरा दिल से जानते हो, बहुत अच्छे, हाँ हाँ बहुत हाँ, अच्छे लोग हैं। जमील सर इज वेरी एक्टिव लीडर। तो मैं रो पड़ी थी, आई वाज जस्ट क्राइंग एट दैट टाइम कि इतना इमोशनल मोमेंट आ गया था कि एवरीबडी वाज देयर एट माय सेलिब्रेशन। तो गाड़ी तो बहुत लोग लेते हैं सर, लेकिन इतना सम्मान के साथ और इतना प्यार के साथ, मतलब जो कार शोरूम के हैं लोग वही खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। मतलब मुझे हाँ होता है, लेकिन एकमात्र वेस्टीज में होता है और कहीं नहीं होता। एंड उस जो कार शोरूम की मैनेजर थी, इवन शी जॉइंड विद मी आफ्टर दिस थिंग। ओके। उसने बस ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ दिस लव। मतलब उन्होंने देखा कि माय गॉड ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ। तो या ऐसा ही होता है। तो मैंने एक्सप्लेन दिस थिंग, तो शी आल्सो गॉट विथ मी। ऐसा है। और बाकी तो सर क्या आपका दिखाना। ट्रिप, फॉरेन ट्रिप का पिक्चर्स आप Yes, दिखा yes, सकते हैं। हाँ दिखा सकते हैं सर। दिस वाज द थाईलैंड ट्रिप, मेरा पहला ट्रिप। ये ट्रिप का सबसे अच्छी बात मुझे लगी थी कि आते ही जब वेस्टीज बस में बैठी तो पूरा बस वेस्टीज हो रखा था। सो दैट वाज इन थाईलैंड। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये तो मैंने इसकी पिक खींची थी मैंने। इवन बॉटल भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, दैट इज इवन प्रोवाइडेड फ्रॉम वेस्टीज। सो दिस वाज ब्यूटीफुल प्लेस। हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट हुआ था, नाइस। these people were there to welcome us। यहाँ पर कितना मतलब ऐसा इस तरह का सम्मान कि आप देखिए हाथियों से हमारा सम्मान हो रहा है विथ वेस्टीज। तो एंड यू फील लाइक, मतलब यहाँ जो रेड कारपेट एंट्री थी वो तो ऐसा लग रहा था खुद को अपने आप को ही कुछ, मतलब वी आर डेफिनेटली सेलिब्रिटीज। सो देखो ऐसा है माहौल। तो दीज आर सम ऑफ द वीडियोस। वहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, इतना कुछ है। तो दीपक सर इज देयर, बाली सर, उनको सच सच नमस्कार भाई, तीनों हैं हमारे। बरेल सर हैं, सिद्धार्थ सर इज देयर, कन्वर सर इज देयर। दिस इज द वाटर पार्क। कितना एंजॉय, कितना एंजॉय, कितना मजा। मतलब ऐसा नहीं कि सर कि थाईलैंड पहले नहीं गई थी, मैं पापा मम्मी के साथ 2-3 बार ऑलरेडी जा चुकी थी। बट दीपल मैम इज ऑल्सो देयर। सो लेकिन बात ये है कि अपने दम पर जब गई उसका आनंद बहुत ही अच्छा था। बिकॉज उससे पहले तो पापा के पैसे से गई हूँ, लेकिन अपने दम पर तो नहीं गई थी। बट इस पे हमारे करीम सर एंड समीना मैम, तो वहाँ अच्छा इस बात का मुझे लगा सर कि ये अपने दम पर था, अपने दम पर था। जो भी किया मैंने अपने दम पर किया है। सो दैट फीलिंग इज सो नाइस, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। ये आप देख सकते हैं, तब मैं गोल्ड थी तो ये भी मैंने वहीं पे कुछ वीडियो किया हुआ था। ओके, गुड गुड, थैंक यू मैम। ये बहुत इंस्पिरेशन, बेसिकली आपको बुलाने का मेरा आज इरादा इसलिए था। सो वी आर वर्किंग विद लॉट्स ऑफ लेडीज इन आवर टीम, यस सर। एंड बांग्लादेश में वी आर डूइंग प्रोग्राम कॉल्ड नारी उद्योक्ता। दैट अच्छा। मीन्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम्म, तो बेसिकली उनके लिए आपका ये सेशन बहुत अच्छा रहा कि एक अच्छे कैरियर आपके सामने थे, थी कि वो आप एक मीडिया में काम कर सकती थी। आपके पास वो काबिलियत है। ये न्यूज़ रीड करना आसान बात नहीं है, ठीक है। सो या एयर होस्टेस की भी नौकरी आपने की हुई है। ये तो आपने दिल्ली से वापस आया बिकॉज ऑफ योर डैड रिटायर्ड, कि आपके डॉक्टर कर्नल हुसैन ने रिटायर किया और आपको बुलाया कि तुम हमारे साथ रहो। तो एक बेटी लंदन में है और एक बेटी अपने साथ, हर मम्मी पापा का ये ख्वाहिश होता है कि हम एक साथ रहे, है ना। तो आपने वो भी बड़ी खूबी से निभाया कि आपने अपने मम्मी पापा के साथ रहा और वहां पे आपने करियर बनाने की एक खोज में आपको वेस्टेज मिल गया। सो दिस इज एन अमेजिंग जर्नी। वो सही है। देखिए, जिंदगी में कुछ राइट रॉन्ग कुछ नहीं होता है। जो भी होता है कि आपके सामने ऊपर वाला जो देता है ना, उसका उस अपॉर्चुनिटी को आपको सही तरीके से ग्रैब करना होता है और उसको मतलब उसके ऊपर अमल करना होता है। थैंक यू मैम। मैं लास्ट क्वेश्चन, सो यू कैन, ये स्क्रीन आप क्लोज कर सकते हैं। हाँ इसको ओके। यस सर, क्लोज इट। स्टॉप शेयर। हाँ अब ठीक है सर। ओके। सो मेरा आपसे एक, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो, यू आर अ लीडर नाउ, यू आर अ डायमंड डायरेक्टर, यू आर अ फॉरेन ट्रिप क्वालिफायर। ये जितने सारे इनकम है, सब इनकम
अभी तक हाउस फंड शायद आपको नहीं मिल रहा होगा। मैं मतलब सर हाँ, दुआ कीजिए, बहुत जल्द ये खुशखबरी देने वाली हूँ, तो हाँ, दुआ मैं वो दुआ करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप जी। वो आप हाउस फंड एंड सिर्फ नॉट ओनली हाउस फंड, एलिट क्लब फंड में भी जाइए। एलिट हाँ, फंड तक यस जा रहे यस, हैं एंड ड्यू सिटी बनिए, ड्यू सिटी बनिए, बिकॉज आपके अंदर वो मतलब जो एक बार एक चीज देखिए, हम ये बोलते हैं कि आप अगर एक बंदे को सक्सेसफुल बना सकते हैं तो आप 16 बंदे को भी बना सकते हैं। तो वो जैसे कि आप एक तैरना, स्विमिंग अगर आप सीख लिया तो आप जिंदगी में नहीं भूलते हो। तो आप एक बंदे को अगर आप सक्सेसफुल बना पाते हो तो आप 10 बंदे को और भी बना पाते हो, बट आपको वो बंदा सही बंदा मिलना चाहिए, और जो बंदा मिल रहा है उनको सही एडुकेशन सिस्टम देना चाहिए। कोई बंदा, जैसे आपने बताया कि आपने आपका ये बिजनेस का ग्रोथ आपने मेरे को बताया फोन पे कि सर मेरा ये ग्रोथ कोरोना के टाइम में हुआ है, और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा भी हाईएस्ट बिजनेस हुआ है इस कोरोना सिचुएशन में। आप जानते हैं कि लोग चेंजेस को अगर अपना लेता है ना, जो भी सिचुएशन है डायरेक्ट मार्केटिंग में, जो हम ये बोलते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग एक बार कर लिया, जिंदगी में कोई भी काम उसके लिए मतलब कठिन नहीं रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है। और इस सिचुएशन में जिस तरीके से हमने, पहले तो हम लोग महीने में एक बार सक्सेस सेमिनार कर रहे थे, और हम अभी एवरी वीक सक्सेस सेमिनार कर रहे हैं। पहले तो हम शायद जब महीने में शायद मैं 10 सेमिनार करते थे, आज मैं दिन में दो टीम के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। सो इसमें एक एडवांटेज ये हो कि ज्यादातर लोगों को मैं मिल पा रहा हूँ, और लोग आसानी से, क्योंकि यही सिस्टम आगे हम लोगों को लेके जाएगा, क्योंकि घर में बैठ के मैं कहीं पे भी किसी को प्लान शो कर सकता हूँ, है ना। सो दिस इज द वे। जो लोग ये अडॉप्ट कर रहा है, आपने अडॉप्ट किया, आपका सक्सेस। इस पैंडेमिक टाइम में आपका हाईएस्ट चेक हुआ, इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपका हाईएस्ट बिजनेस हुआ, इस पैंडेमिक सिचुएशन में वेस्टेज का हाईएस्ट सेल हुआ। आप देखिए, ये ऐसा एक बिजनेस में हम लोग हैं जहां पे इकोनॉमी डाउन हो रहा है, लोगों का नौकरी जा रहा है। जो वेस्टेज में नौकरी करता है वो लोग खुश है, क्योंकि उसके लिए सैलरी कार्ड भी नहीं है, उसके लिए मतलब घर में बैठ, दे आर वर्किंग फ्रॉम सेल्स टीम, तो वर्किंग फ्रॉम होम, और ऑफिस में भी जाके ये काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। उनका मतलब सैलरी से लेके सब कुछ सही है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है, दे आर ऑल्सो अर्निंग। इस पैंडेमिक सिचुएशन में सिद्धार्थ सिंह का चेक 1 करोड़ 18 लाख। सो दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो मैं आपको मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि व्हाट आर द 3 थिंग्स यू विल सजेस्ट कि एक नए बंदे को क्या करना चाहिए, और एक सक्सेस मंत्रा क्या आप देंगे आज की ऑडियंस को? नंबर 1 तो सर पेशेंट रहना पड़ेगा, बी पेशेंट। वो मैं पहले ऑलरेडी भी बोली चुकी हूँ इस बात को कि आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। इतना मतलब हबड़ा तबड़ी नहीं, नो हबड़ा तबड़ी, मतलब सिस्टम के साथ काम कीजिए और पेशेंट होकर काम कीजिए। बिकॉज एक बात बहुत जरूरी है, पेशेंस। अभी हर चीज का सर भगवान ने, अल्लाह ने टाइम लगा के रखा है ना सर, तो उतने टाइम में चाहिए तो चाहिए। अब उतना टाइम से पहले कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसमें भी अगर इतना हबड़ा तबड़ी करेंगे तो वो हो नहीं सकता। तो ऐसा बोला जाता है कि रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, बट यस, रोम वॉज बींग बिल्ट एवरी डे। हर दिन जरूर बन रहा था रोम, इसलिए जाके रोम पूरा बना है। सेम गोज फॉर ताजमहल एज वेल। तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक खड़ा हो गया, हर दिन हो रहा था, हर दिन हो रहा था, हर दिन हो रहा था, एक दिन जाके बन गया। तो उसमें पेशेंस की जरूरत नहीं थी क्या सर? पेशेंस तो थी, इसलिए तो खड़ा हुआ है। तो हर चीज में सर अभी जो टाइम है, टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम के अनुसार अगर आपने काम किया तो पक्का और पक्का सक्सेस आपको मिलेगा। दूसरा ये कि आपको जिद्दी होना है, बी स्टबर्न। स्टबर्न को गलत सेंस में मत लीजिए, मतलब स्टबर्न इन द सेंस कि आपको गोल के प्रति आपको स्टबर्न होना पड़ेगा कि चाहिए तो चाहिए। अब इसका एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एक जब बच्चा माँ बाप के साथ कोई मॉल वॉल में जाता है और जाकर अगर वो कोई खिलौना विलौना को पसंद है, माँ बाबा हमारे चाय बोले जिद करता है, तो पापा बोलते हैं ना अखन ना परे 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 बोलता है, लेकिन वो फिर भी वो मानता नहीं है, वो चिल्लाता रहता है, पापा दाओ ना दाओ ना दाओ ना, मट्टी में गिर जाएगा, रोएगा पागल की तरह एकदम पूरा वो करेगा। तो उनकी इज्जत खराब कर दिया, बदतमीज बच्चा, ऐसे बोल के फिर मतलब माँ बाप एट लास्ट, मतलब इतना शर्म लगता है उनको कि एट लास्ट जाके वो उसको खिलौना उसको पकड़ा कर देना ही पड़ता है, एंड ही इज हैप्पी चाइल्ड। सो दैट वाज दैट जिद। तो हम सब में एक्चुअली वो जिद आना पड़ेगा, वो बच्चे की तरह जिद करना पड़ेगा कि और वो जिद किससे? जिद ऊपर वाले से, कि अल्लाह भगवान देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा देना पड़ेगा, कैसे नहीं देगा। और जब इतने बार आप यूनिवर्स को इतना पॉजिटिव ये थॉट भेजोगे कि मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो, तो भगवान भी एक्चुअली मान जाएगा ही और बोलेगा ये बहुत जिद्दी बच्चा है, इसको दे दो, इसको जो चाहिए इसको दे दो। तो भगवान भी मानेगा। तो आपको स्टबर्न होना है, आपको पेशेंट होना है, और आपको ऑफकोर्स
अपने अपलाइन का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अपलाइन से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं बोल के, ऐसा कहीं कहीं केसेस मैंने देखे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने अपलाइन को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन हु हैज एक्चुअली शोड यू दिस लाइन। सो उसको रिस्पेक्ट के साथ उनको रिस्पेक्ट दीजिए, ड्यू रिस्पेक्ट उनको दीजिए। और अपलाइन आपका हमेशा अच्छा चाहेगा, कभी बुरा नहीं चाहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपलाइन आपका बुरा चाहे। सो अपलाइन को रिस्पेक्ट के साथ सिस्टम के अनुसार काम कीजिए। और इसी प्रोग्राम के जरिए मैं हमारे गौतम बाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सिंह सर को भी एकदम मेरे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी सर, कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने हमारे लिए, हम जैसों के लिए लाया, कि जहां मतलब जो कुछ भी नहीं था वो आज बहुत कुछ हो चुका है। वो एकमात्र हो पाया है ये आप लोगों के इस विजनरी थॉट के हिसाब से, जो विजनरी आप विस्टीज का, जो विजनरी आप नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट हमारे लिए लेके आए हो सर। तो इनके लिए सर, तीनों को ही सर मेरे दिल से सर शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मदाह जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया आज का सेशन रहा, और मुझे लगता है कि जो लोग आज आपको सुने हैं उनके अंदर भी वो जोश आ जाए आपको देखते हुए। और मेरा सलाम दीजिएगा आपका अम्मी पापा को, क्योंकि दे आर द इंस्ट्रूमेंटल ऑफ योर सक्सेस। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे कि मेरे घर पे भी मेरे मम्मी ने यहाँ पे मेरे घर पे पतंजलि का प्रोडक्ट्स आता था। माई मदर वॉज ए फैन ऑफ रामदेव, ठीक है। सो मैं अपना प्रोडक्ट्स ही मेरे को मम्मी को दे नहीं पा रहा था। बट जब मैंने जब माय फादर वाज, अभी तो गुजर गए हैं, वो नहीं है, तो मेरे पिताजी को मैंने वो एक प्रोडक्ट्स दिया था जो खाने के बाद उनको भी राहत मिला था, मतलब घुटनों पे ग्लूकोसामाइन के साथ। और उसके बाद मेरा मम्मी का भी मतलब फेथ आया मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर। फिर हम उनको मेरे मम्मी ने भी ज्वाइन किया, एंड माय मदर इज आल्सो अ ब्रोंज डायरेक्टर हियर इन वेस्टेज। सो बाय द वे, मैं शायद ये पापा भी सिल्वर डायरेक्टर बने। पापा आल्सो जॉइंड अंडर मी, और पापा इज अ सिल्वर डायरेक्टर। सो योर डैड वाज ए कॉर्नेल, वो डॉक्टर थे, वो एलोपैथी डॉक्टर थे। फिर उन्होंने भी, जब कोई भी अगर स्टडी करता है, शायद बहुत सारे डॉक्टर्स है वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, बट वो मन ही मन में जानता है कि इस प्रोडक्ट्स का पावर क्या है। और वो मतलब एक सही प्लेटफॉर्म बेसिकली सबके लिए है। और ये आपकी जो फैमिली है, आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, ये मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मतलब इंस्पिरेशन देगी। वो बहुत सारे लोगों को एक एक हम क्या बोलेंगे, एक सक्सेस पाथ अपने दिखाया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बहुत मतलब शुक्रिया आपका, कि अल्लाह आपको बहुत दुआ करे, जितना जल्दी हो सके आपका नेक्स्ट लेवल अचीव करे। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा सर, आपने मुझे ये चांस दिया, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज मतलब आई स्टिल फील दैट आई एम लाइक, मतलब आपने मुझे दिया चांस, यही बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सो मच कि इतने सारे लोग हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं। और अगर किसी एक बंदे या बंदी का लाइफ में भी अगर मैं थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन का अगर थोड़ा किरण भी दे सकूं, then I would think that my birth to this earth is actually fulfilled. The reason for my birth is actually fulfilled. So thank you so much sir for this opportunity that you have provided. शांता मुखर्जी मैम को भी मेरा एकदम तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी जी। মদিহা ইয়াসমিনকে, যার বাবা একজন রিটায়ার্ড কর্নেল এখন, এবং উনি একজন ডক্টর, এবং উনিও এখন সিলভার ডিরেক্টর, এবং নিজের ফ্যামিলিতেও আমরা বিজনেসটাকে কিভাবে স্প্রেড করছি। সো শুধু তাই নয়, আসামে থেকে কাজ করে মিডিয়াতে কাজ করতো, আপনারা দেখেছেন উনি নিউজ রিডিং করতেন, চ্যানেলে চাকরি করতেন। তার আগে দিল্লিতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে কাজ করেছেন, এয়ার হোস্টেস ছিলেন। বিভিন্ন প্রফেশনে কাজ করার পর যখন বাবা মার ডাকে চলে এসেছেন আসামে, আসার পর ভাবছিলেন যে কি করবেন, এবং 2500 টাকা টিভিতে সিরিয়াল করেছেন। 500 টাকা, আমাদের এখানে এটাই হয়, 500 টাকা 1000 টাকা দিয়ে পার ডে বেসিসে আর্টিস্টরা অ্যাক্টিং করে। সেই ধরনের কাজ থেকে শুরু করে 2500 টাকার চাকরি দিয়ে শুরু করে উনি 10,000 টাকা অবধি নিউজ রিডিং এর জব করেছেন আসামে। এবং তারপর যখন তার একদিন চাকরি চলে যায়, তখন উনি বাড়িতে বসেছিলেন। সেই সময় একটা অপরচুনিটি আসে ভেস্টিজ, এবং ভেস্টিজ উনি শুনতে চাননি, বাট উনার একটা প্রবলেম ছিল, গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম। সেই প্রবলেমটার থেকে हम थोड़ा ब्रीफ कर दे रहे हैं आपका सक्सेस स्टोरी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर। यस यस। গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম, সেখানে ওনার আপলাইন জামিল আহমেদ, জামিলকে আমি পার্সোনালি জানি, দারুণ ডাইনামিক একজন লিডার। গুয়াহাটিতে আমাকে মিট করতে এসেছিল, আমার হোটেলে এসেছিল, আর দারুণ একজন লিডার জামিল আহমেদ। জামিল ওনাকে প্রোডাক্টস রেকমেন্ড করে, এবং প্রোডাক্টস খাওয়ার পর 12 দিনের মধ্যে ওনার কাছে রেজাল্টস চলে আসে। এবং এই প্রোডাক্টের রেজাল্টস দেখে তার মাও, ইয়াসমিনের মাও প্রোডাক্ট ইউজ করতে স্টার্ট করে, এবং উনিও রেজাল্ট পান।
এবং তারপর প্রোডাক্টসের রেজাল্ট দেখে যখন ওনার বাবা প্রথমে একদম নেগেটিভ ছিলেন এই বিজনেসে, তার বাবাও হার্টের, ওনার 2012-তে হার্টের প্রবলেম হয়েছিল এবং উনি হার্টের প্রোডাক্টসের দেখলেন এবং উনি অ্যাজ এ ডক্টর প্রোডাক্টগুলোকে দেখে ওনার ভালো লেগেছে বলে উনি 3টে প্রোডাক্টস রেকমেন্ড করেন এবং উনি নিজের জন্য আসতে বলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে জাস্ট নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিজনেসটা করতে করতে ওনার কাছে 900 টাকার চেক, 1000 টাকার চেক যখন ক্রস হলো, তখন উনি আপলাইনকে ফোন করে বললেন আমার কাছে এরকম টাকা আসছে কেন। শুধু কনজিউমার হিসেবে স্টার্ট করে ওনার মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো যে আমার কাছে টাকা আসছে কেন, আমি কেন মান্থলি আমার কাছে টাকা ঢুকছে। তখন উনি রিয়েলাইজ করতে পেরেছেন হোয়াট ইজ দিস বিজনেস অল অ্যাবাউট, এবং বিজনেসটা সিরিয়াসলি করেছেন। এবং আপনারা দেখলেন ওনার ফরেন ট্রিপের ছবি, আপনারা দেখলেন ওনার ডায়মন্ড ডিরেক্টর হওয়ার ছবি, এবং আমরা আশা করছি যে খুব দ্রুততার সঙ্গে উনি ক্রাউন ডিরেক্টর হবেন। তো একজন লেডি যিনি লাস্ট 3 বছরে 10 লক্ষ টাকার উপর ইনকাম করেছেন বাড়িতে বসে বাবা মার সঙ্গে থেকে। তো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে বলবো আজকের এই ইন্সপিরেশন আপনাদের সকলের মনে থাকবে। আমি আপনাদেরকে বলছি যে ভেস্টিজ এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখান থেকে আপনি আপনার স্টোরি ক্রিয়েট করুন, যেন একদিন আমি আপনার ইন্টারভিউ নিতে পারি আর আপনি হাজার হাজার লোককে আপনার স্টোরি শোনাতে পারেন। এবং তার মধ্যে যদি যেরকম ভাবে ইয়াসমিন বললো, যদি একটা লোকেরও লাইফ চেঞ্জ হতে পারে, তাহলে আপনি ভাববেন আপনার জন্মটা সার্থক হয়েছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, উইশ ইউ ওয়েল। থ্যাংক ইউ ইয়াসমিন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। We are closing the show now. Thank you so much. Thank you. Yeah, wish you well.